Here we go. हाँ जी, we're back again और आज एक बहुत ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है. हम कर रहे हैं आज ऑल टाइम PSL ड्राफ्ट. उसके लिए एज यूजुअल हमारे साथ बहराम काजी तो है ही, और दो और गेस्ट जो हमने आप लोगों से मांगी थी कि 1 मिनट की वीडियो अपनी सबमिट कराएं. उसके लिए हमने 2 गेस्ट सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के पास चांस नहीं है. अभी आ सकता है आप लोगों के पास चांस. हमारे साथ हैं अली ताबिश, who is as experienced as one can get in the media industry. हमसे ज़्यादा experience है. Probably has like a decade head start over us. और दूसरा है मूसा, जिसके पास पहला experience है ये. So it's gonna be a fun combination, right? Yeah, debut हो रहा है आज मीडिया में मूसा का. हाँ. कैसे हो boys? All good, alhamdulillah. आप बताएं. Fit fart. Ready for the draft? Yeah. क्या सीन लग रहा है मूसा? पिक कर लोगे अपने players? फिलहाल तो feel a bit humbled. Ton of experience around me. लेकिन the first pick is mine, so 2 second. We'll come to the first pick. Yeah. समझा देना पहले अवाम को, समझा दें कि ये हो किस तरह है. So I'll give you a quick explainer. So it's going to be a snake style draft. जिसने कभी कोई fantasy league खेली हो online, the way it works is that first pick goes obviously first, and then 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. So first and fourth will get 2 picks in a row. मगर जो first है उसको पहली बारी में सिर्फ एक ही पिक मिलेगी. Just by the way, ये फर्स्ट पिक इसने बहराम ने मेरे ऊपर बारियां लगा के की. वही जो बचपन में जिस तरह करते थे ना क्रिकेट में, गली क्रिकेट में बारियां लगाते थे, उस तरह इसके सर के पीछे नंबर्स रखे थे और बारियां लगाई थी. So मूसा इज फर्स्ट. एक और स्टिपुलेशन है जो बता दूं आवाम को कि a player has to have played at least 1 PSL game to be eligible to be drafted in this draft. So 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, उसमें से 4 फॉरेन होंगे, बाकी सारे 7 लोकल. मूसा की फर्स्ट पिक है, then बहराम, then me, then Ali, me, बहराम and मूसा. Yeah. And so there's no 12th man. There's no 12th man. कैप्टन सेलेक्ट करेंगे लेकिन. Yeah. और विकेट कीपर ऑब्वियसली. और फिर as always क्या एक ही दफा हमने पहले किया, आप लोगों के पास ऑप्शन होगी पोल करने की, Twitter, Instagram and all that stuff to see who wins this. Yeah. Let's get into it. All right, Musa, number one pick. so ये मैं एक्चुअली घर से सोच के आया था, because no brainer था मेरे लिए. I know probably खाली मैंने ये सोचा होगा पहले, but it's going to be Rashid Khan. ये सिर्फ तुमने नहीं सोचा था, literally मैंने भी सोचा था. मैंने भी यही सोचा था. Any sane person with 2 functioning brain cells would have picked Rashid Khan as their first pick. Obviously, मेरी भी first pick. Reasoning ये है कि अभी मैं scratch से start करूँ अपनी team, and he has the ability to be the spine of my team. और अगर T20 की बात की जाए तो वो गेम ही ऐसी है जिसमें impact और value, accumulated value की बात अगर करें तो राशिद खान with both bat and ball. I don't think इस पूरे PSL की history में कोई ऐसा प्लेयर आया जितनी उसकी accumulated value है T20 क्रिकेट में. Perhaps in the history of the sport itself. T20. Yeah, T20s one में. specific format. Yeah, T20s में I don't think there's ever been a more valuable player than Rashid, so it makes perfect sense for you to go for him. मुझे लग रहा था किसी और का नाम ले लोगे, मैं खुश हो गया था. मैं भी यही सोच रहा था. मैंने कहा मैंने इसी वजह से ना, मुझे पता था किसी जिसकी पहली पिक है उसने राशिद लेने ही मैंने कंसिडर ही नहीं किया राशिद को. Although जो मेरी लाइनअप है, राशिद fits very nicely into the lineup that I have. That I might eventually have. Yeah. So it's a tough one for me because I could go for a plethora of foreign picks which would all make sense. मगर यार लेग स्पिनर्स की बड़ी किल्लत है दुनिया में. किल्लत तो है. और मुझे साथ एक ऑलराउंडर भी मिल जाएगा and someone who can potentially captain my team. So my pick is Shadab Khan. 4-dimensional player, obviously batting भी अच्छी कर लेता है, middle order में spin basher बड़ा ज़बरदस्त है. ठीक है, the spin bowling has been on the wane. Let's be honest about that. But of course, we're looking at the history of the PSL right now. And Shadab Khan rose to prominence via the PSL. तो इसलिए it was a bit of a no-brainer at the end of the day for me. और fielding में तो मेरे ख्याल से I've really shored up my stocks क्योंकि arguably the best fielder in Pakistan cricket history, right? फिर साथ कप्तानी भी कर लेगा. तो फिलहाल मेरा कप्तान शादाब ही है. फिलहाल. ये मैं बताऊंगा अगर आगे जाकर बदले. मगर फिलहाल शादाब ही, and that's my first pick. अच्छा, नाइस वन. मैं एक्चुअली नहीं थी मेरी फर्स्ट पिक शादाब. मेरी फर्स्ट पिक राशिद थी. और बड़े तो नहीं, मेरी फर्स्ट पिक भी राशिद थी, मगर मैंने वही सोचा कि लेग स्पिनर चाहिए कोई. हाँ, सेकंड पिक मेरी है. फर्स्ट पिक तुम्हारी तो फर्स्ट पिक ही है भाई. मेरी फर्स्ट पिक जो मेरी सेकंड होनी थी बेसिकली, दैट इज एंड्रू रसल. ओके. रसल एक तो ऑलराउंडर्स की काफ़ी कमी है दुनिया में, और रसल की जो पीक थी ना T20 क्रिकेट में एज एन ऑलराउंडर बहुत कम लोगों की होती है. बीच में डिप आया, काफ़ी ज़्यादा अरसे का डिप आया, लेकिन बैक अगेन अब वापस वो साइंस शो कर रहा है कि उसकी जो वैल्यू है T20 क्रिकेट में, दैट्स राइट अप देयर.
इस्लामाबाद के लिए वो एक सीजन भी जितवाया था उसने, फर्स्ट सीजन, और मेरे लिहाज से वो जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो मुझे राशिद खान में नजर आ रही थी, उसके बाद इसमें नजर आ रही। नहीं, अच्छा किया तुमने, क्योंकि ऑलराउंडर्स आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड इन दिस फॉर्मेट, एंड इवन दो आई पर्सनली फील दैट ड्रे रस इज अ शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, क्योंकि उसका फॉर्मर सेल्फ इतना कुत्ता था। बट देन अगेन यही ब्यूटी है ना ड्राफ्ट की, कि आपने जिस तरह आपने टीम बनानी है, Exactly. आई एम पिकिंग रसल, तो मैं उस वैल्यू पे उस पे और pick तुम कर रहा हूं। पीक रसल पिक कर रहे हो यहाँ पे, Exactly. यू नो, दिस इज नॉट अ टीम दैट्स गोइंग टू प्ले टुमारो, और दिस इज नॉट अ टीम के सिर्फ जिसने पीएसएल में परफॉर्म किया, प्लेयर की बात है। you could have any rationale, it's Yeah. completely subjective, but anyway, अली ताबिश भाई, सब मैं आई वाज रियली, मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा कि फर्स्ट पिक्स मिस हो रही हैं, मतलब हो गई हैं, और किसी ने बाबर आजम को नहीं लिया फर्स्ट पिक में, यू नो, एज मतलब क्या ही मैं मजीद कह सकता हूँ इस पिक के बारे में। एक स्टोरी बताऊं आपको मैं, बताएं। लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप वाला ड्राफ्ट किया था ना, हो गया था वो तीसरे चौथे राउंड में पिक, और हमारे शफकत भाई जो हैं अब जो पीसीबी में काम कर रहे हैं, सो कांग्रेचुलेशन शफकत, ही थॉट बाबर वाज अनपिक्ड, सो ही वेंट ऑन एन एंटायर मोनोलॉग ऑन बाबर आजम, फिर हमने कहा यार वो पिक हो गया। कोई 1.5 मिनट का मोनोलॉग था, अब सोचे पता नहीं कहाँ जाएगा। हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, नहीं, फनी अच्छा, था। मैं आई थिंक मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि ऐसा प्लेयर बाबर आजम जैसा, ऑब्वियसली इन दिस फॉर्मेट ऑफ कोर्स, कि जहाँ पूरी दुनिया तारीफें कर रही है, और मुझे यकीन था क्वाइट लिटरली कि प्रोबेबली कोई ना कोई तो ले ही लेगा, बट yeah, so my first pick is Babar Azam. Captain to be announced later. Probably not Babar Azam, but इख्तलाफ तो है बाबर की कैप्टेंसी से काफी रहे हैं, बट इन अ सेंस कि अभी जो टीम बनेगी उसके हिसाब से एलसी probably बाबर Is he opening for you? Most, yes, of course. अच्छा, चलो, you also have another pick by the way. Yeah. Second pick, तो मैं थोड़ा सा अपनी टीम का लाहे अमल एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, मे बी ऑन द थर्ड और फोर्थ करता हूँ, बट माई सेकेंड पिक वुड बी लूक रॉन्की। Oh, good one. I was thinking of Ronki, man. मैं जब से यू नो व्हेन साथ डिस्कस्ड विद मी कि हम ऑल टाइम पीएसएल ड्राफ्ट करें, लाइक रॉन्की मेरी टीम में जो मर्जी हो जाए, जहाँ से मर्जी आ जाए। अच्छा, अगर बाबर आजम ना पिक हुआ होता तो अगर हो गया होता तो फिर लूक रॉन्की वुड हैव बीन माय फर्स्ट पिक, बट नाउ दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू गाइस सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेजर of having Luke Ronchi and Babar Azam opening for me. That is a stable, fantastic opening combination. They complement each other really well. और Ronchi तो यार बस आता था और from the word go मारता था। Yeah, if you guys remember that bad drop, the first time that he did it, और वो क्या मैच था इस्लामाबाद का, मतलब I think it was the first time probably जब हमने PSL के मैच में फायरवर्क्स भी देखे थे ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड जो होते थे, उससे पहले उसे सब उस किस्म के फायरवर्क्स नहीं होते, और वो पीक थी ल्यूक रॉन्की की जो उसने क्वालिफायर जिता के इस्लामाबाद को फाइनल में पहुंचाया था, और उसके बाद मिसबा के बस वो टर्म्स है कि वी जस्ट पीक्ड एट द राइट टाइम, और प्रॉब्ली दैट वो इमेज मेरे दिमाग में बची हुई अभी तक, एंड आई थिंक he's been wonderful जो उसने जितना खेला है PSL. Exceptional. There was this game versus Karachi Kings where they just chased it down without losing a wicket, और Ronki ने तबाह कर दिया। अच्छा, मेरी पिक गई रॉन्की, अब तुम्हारी सेकंड पिक आ गई है। अब मेरी सेकंड पिक आ गई है, और अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एंड आई वांट अ विकेट कीपर। Yeah, that is मैं पहुंच गया हूं, you know, दो विकेट कीपर बैटर्स हैं जिनको मैं लेना चाह रहा हूं, लेकिन अब मैं कंफ्यूज्ड हूं कि किसको लूं। कंफ्यूजमेंट हो गई तुम्हें? कंफ्यूजमेंट काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि लेकिन फिर इट्स नो ब्रेनर, एबी डिविलियर्स यार, चलो तुमने दूसरा मेरे लिए छोड़ दिया फिर। ना दूसरा ले लेना। एबी डिविलियर्स इज नो ब्रेनर यार, मतलब उसकी क्या ही मैं बात करूं, मैं कोई बात नहीं कर रहा। मिस्टर 360 पीएसएल में ऑब्वियसली थोड़ा कम खेला है, वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं आई, एक दो इनिंग्स बहुत क्रेजी थी उसकी, लेकिन देन अगेन इट्स एबी डिविलियर्स मैन, मतलब उससे बेहतर बैटर इन द मॉडर्न डे मैंने नहीं देखा। विराट कोहली है, लेकिन T20 में अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आई वुड ऑलवेज पिक एबी डिविलियर्स। It's an interesting pick also because it's not like he has a fantastic PSL record. हाँ. But I mean, it makes sense. Yeah. I mean, I would probably go for AB as well. हाँ. अब मैं कल सोच उन्होंने रहा हूँ, जो बात की, बाबर आजम ने स्पेस में बात की थी कि आई वुड लव टू हैव बैटेड विद एबी डिविलियर्स, आगे से बॉस ने रिप्लाई भी किया, आई वुड हैव लव्ड टू बैटेड विद यू टू माय मैन। AB is very active on social media. He has his own YouTube channel as well. वो अलग बात है कि कभी कभार सुला देता है। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा नहीं काफी, और ridiculous उसके suggestions होते हैं। I'm hoping he's going to hit a lot of nines for you, sir. Upside down sixes. Yeah. अच्छा, तो अब मैं सोच रहा हूँ यार, बारी तो मेरी फिर से फौरन आ जाएगी, सो मे बी आई विल टेक अ चांस ऑन द विकेट कीपर,
क्योंकि there is this one guy I really want in my team, and that guy is Shane Watson. Ah. ठीक है, Watto जो है that's great pick. fantastic PSL career, a title winner with Quetta Gladiators as well, was an integral part of that team. And वैसे तो मेरी टीम में इस वक्त मैंने उसको ऑलराउंडर की तहत नहीं रखा हुआ, मगर जरूरत पड़े तो एक आधा ओवर करा ही सकते, कराया था ना उसने क्वेटा के लिए वो क्वालिफायर में, इस्लामाबाद के लिए भी काफी इस्लामाबाद के लिए बहुत है। तो Watto जो है when T20 cricket came about, he was in his peak or peaking. And he really capitalized on that format over there, and he remained relevant for a long time even after retirement. बड़े कम players होते हैं जो retirement के बाद भी इतने अच्छे होते हैं जितना अच्छा Shane Watson था, and it's just like he's a clean hitter of the ball, a very safe pair of hands, very experienced head in the team. And yeah, I mean, when I was thinking of foreign picks prior to this draft, obviously Rashid was like टॉप ऑफ द फूड चेन, मगर उसके बाद मेरे दिमाग में वाटो ही आ रहा था यार, और अब वो कोचिंग भी कर रहा होगा इस साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, सो या लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस सॉलिड पिक, या हां फॉर श्योर, एंड आई थिंक आई विल ओपन विद हिम, या वाटो है तो ओपन ही कराओ यार। हां भी मूसा, अच्छा सो घर से मैं ये भी सोच के आया था यार कि अगर राशिद मैं नहीं पिक करता तो मैं रॉन्की पिक करूंगा, बिकॉज ही हैड टू बी माय फर्स्ट पिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अली भाई ने ले लिया उसको, बट आई एम गोना गो विद a player of a similar style at the same role, Jason Roy. I want him to Good pick. I want him to open for me, or I need an opener जो कि from the get go runs को accelerate कर सके, and so Roy is going to open for me. So basically रोल जो है वो लाइक फॉर लाइक ही, हाँ, रॉन्की को उसने रॉय से रिप्लेस किया, pretty much. The only solid value you get with Ronki is he keeps wicket as well, so that makes him a fantastic pick. Roy also has arguably क्यों the greatest knock in PSL history. हो सकता है, हाँ yeah, for sure. And Last season he's definitely up there in the all-time strike rates as well, like the way he plays, his style. It's hit out or get out वाला stuff. Yeah, for sure. हाँ भी बिना में नहीं उसकी एक और पिक है भाई, या क्या हो गया, तुम भूल गए हो बॉय का, तुम प्लेयर काट गए हो। हाँ जी मूसा, So my next pick is gonna be, देखो मुझे न्यू बॉल बॉलर चाहिए, एंड आई कांट थिंक ऑफ मेनी नेम्स, मेरे दिमाग में दो ही आ रहे हैं मेन गेम जो गेम, But not just you, brother. Yeah, you think always that it's just you, but we're all on to you, bro. लेकिन I'm gonna be disappointing the Shaheen fan base here by picking Amir. Okay, 'Cause all right. ठीक है, having watched more cricket pre 2020 pre COVID, I feel like आमिर जो न्यू बॉल के साथ मैजिक प्रोड्यूस करता है, इट्स अनपैरेलल्ड। किसी भी विकेट पे अगर स्विंग है तो आमिर विल कैपिटलाइज ऑन इट, और ही विल गेट यू विकेट्स इन द ओपनिंग ओवर्स, और अगर नहीं है फिर बस फिर बढ़ गए, अगर नहीं है तो ही हैज प्रोग्राम तो बढ़ गया। इफ यू पिक अ सर्टेन वर्जन ऑफ हिम, आई फील लाइक आमिर हैज कंट्रोल कि वो अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन कर सके कंडीशंस के लिहाज से, जैसे भी कंडीशंस हो। इवन But what you're saying is that was the Amir that we used to know as well. but that's also fine, Yeah. because I we're picked AB de Yeah. Russell, Yeah. No, yeah. I get that, but because he's also playing currently, and we might get to see him very shortly as well in the PSL. ठीक है, makes sense. अब तुम्हारी बारी है। हाँ, जस्ट ऑन आमिर, वैसे मेरी डेप्थ चार्ट में था वो, आई नो दैट आई हैव सेड थिंग्स एंड आई स्टिल हैव माय ओपिनियंस, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड क्रिकेट अलोन, आमिर इज स्टिल अ वेरी वैल्यूएबल एसेट, खास तौर पे जिस तरह न्यू बॉल की बात की उन्होंने, आई थिंक ही इज स्टिल वेरी वेरी पोटेंट विद द न्यू बॉल। डेथ ओवर्स में थोड़ा मसला हो जाता है, मगर वो तो आजकल कहीं और भी हो रहा है, सो कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे हो रहा है। या अच्छा यार, अब मेरे पास बारी फिर से आ गई है, मेरे ख्याल से मुझे कीपर उठाना पड़ जाना है, क्योंकि वो निकल जाना है और मैंने काम ही नहीं लेना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कामी का ब्रिलियंट रिकॉर्ड है पीएसएल में, एंड यू नो ही इज नॉट गोइंग टू बी अ बैड पिक, बट एक्चुअली वांट अ गुड कीपर एज वेल। बट वो रिकॉर्ड बैटिंग का है, कीपिंग का नहीं है। हाँ, तो वो चीजें भी दो देखनी पड़ती हैं, प्लस आई वांट समवन हु इज एबल टू रैली द टीम एंड सबको एक करके रखे, तो मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली। अच्छा, इजी, ठीक है। अच्छा, आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर मेरे मिडिल ऑर्डर में और लोग सोचे हैं अपने। हाँ, फिर मेरी भी नहीं आ रहा ये तो। हाँ, मैं तो समझा तू वो पिक करेगा। मैं पिक करता उसे आजम को, आई नो सब यही सोच रहे होंगे। अच्छा, तुम वो नहीं सोच रहे? मैं फॉरेन सोच रहा था। अच्छा, फिर मैं तो भूल गया हूँ बिल्कुल इस फॉरेन प्लेयर। मैं चुप मगर मैं आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद रिजवान एज अ पिक, बिकॉज़ यू नो वॉटसन ऊपर आकर वैसे ही मारेगा, दैट विल गिव रिजवान द फ्रीडम टू समवॉट एंकर, even though I wouldn't want him to, but चलो एक अगर इस तरह का प्लेयर मैंने रखना ही है, बाबर इज ऑलरेडी टेकन, तो रिजवान को रख लेते हैं कि अगर सारे आउट होते रहे तो कम से कम रिजवान तो खड़ा रहेगा ना मेरे लिए, 90 of 63 मार देगा ना वो। ठीक है यार, अब तुमने मुझे जो है ना, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही तुम किस प्लेयर की बात कर रहे हो। कश में डाल दिया, क्योंकि
ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसे पकड़ लूं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं कि जरूरत नहीं है उसकी मुझे, लेकिन एक बंदे की जरूरत है एंड ही विल स्लॉट इन माय मिडिल ऑर्डर परफेक्टली, दैट्स केपी. Yeah, I was gonna go for KP. Honestly, मैं सोच ही रहा था कि किसी ने ले लेना है. केविन पीटरसन को मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि केविन पीटरसन है. हाँ भाई. ठीक है ना, उसका क्वेटा के लिए बहुत क्रेजी तो रिकॉर्ड. तुम कह रहे हो तुम्हारी टीम में AB और KP दोनों हैं? AB KP दोनों नाइन्स मारेंगे. Upside down sixes all over. भैया सिर्फ KB AP. हाँ, KB और AP हो गया. #AP. हाँ. KB Dillon. And Andre Russell, that's all guns तुमने वैसे blazing. काफी एग्जॉस्ट कर ली अपनी फॉरेन पिक्स. मुझे चाहिए फॉरेन, और बाकी सारे लोकल से भरूंगा. देख, अगर मैं PSL असल में ड्राफ्ट कर रहा होता ना, कभी भी इस तरह ना मैं अप्रोच रखता, क्योंकि मैंने पूरा सीजन लोकल कोर बनाते हो पहले, मगर दिस इज फन. लेकिन एक टाइम ड्राफ्ट है, कौन सा इन्होंने खेलना है, सो आई वांट टू फिल माय टीम विद सुपरस्टार्स. बड़ी को खतरनाक पिक्स हैं तुम्हारी वैसे आपस की बात है. लाइक दोस गाइज आर लाइक IPL की अगर तुम ड्राफ्ट कर रहे होते ना तो वो शायद पहुंच जाते. दिस इज क्रेजी. केविन पीटरसन क्वेटा के लिए तुमने देखा ही है क्या हाँ. किया है उसने. Can we all remember that game in which Sarfaraz and KP literally like chased down 220 odd और बहुत आराम से, बहुत मार के. मुझे याद है इसने शारजा में एक छक्का मारा था, बाहर गई थी बॉल ग्राउंड से, इतना ह्यूज छक्का था ना वो. और KP इज अ सुपरस्टार. अगर T20 वैसे तो टेस्ट और वनडे में भी, हाँ टेस्ट में भी सुपरस्टार था. ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट बैटर्स जब वो खेल रहा था. थोड़े से उसके भी व्यूज से मुझे मसला है, लेकिन देन अगेन ये व्यूज पे नहीं टीम में सेलेक्ट कर, ये क्रिकेट खेल लेनी है. नहीं, I mean Kevin Peterson hands down, one of my favorite players also. I love to watch him bat. और जो उसका अंदाज था बैटिंग करने का. Love to watch him bat. Yeah. सुनने में नहीं. हाँ, सुनने में I have my reservations, but it's just the way he struck the ball. जिस तरह वो निकल कर long levers, golf shots मारता था वो literally, बहुत मजा आता था KP को बैटिंग करते हुए देखने का. Even a shot is associated with him, the switch hit. Yeah, he is the pioneer you could say of the switch hit. On the international arena. पीछे आगे पीछे तो चल रहे थे, उस तरह तो चल रहे होंगे. Bringing it to the forefront was, I think side by side ही थे डेविड वार्नर भी और केविन पीटरसन भी, जो स्विच हिट जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में. और KP पूरा ही मुड़ जाता था, वो पूरा लेफ्टी बन जाता था. तो हाँ, पूरा लेफ्टी बन जाता था. आ जाए अली भाई. आप ये next two picks for you. Yes, 2 bucks. अच्छा, I'm Two not picks really Shakur. confused, but 2 picks Tabish. पर मुझे I think pick Tabish. यार बस कर दे. that probably could be the most ironic joke against me, because दांतों में चीजें नहीं बसती. no, at a point in time my father used to call me a toothpick. I was so slim, I was so lean, and he's like, कुछ खाया करोगे. पूरी दुनिया ये कहती थी आप इसको कुछ खिलाते नहीं है, and my dad used to say, नहीं ये खाता है बस इसको लगता नहीं है. तो मेरा उल्टा हिसाब था बहुत लोगों से. Get it? Yeah. खाता है लेकिन लगता नहीं है. But yeah. Okay. ये तो जरा थोड़ी पॉलिटिकल टॉक चली है, लेकिन क्रिप्टिक शिट हो गई है. I like it. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट मैं जाऊंगा फॉर जो 2 पिक्स हैं उसमें एक तो, अच्छा मेरा स्क्वाड जो मैंने अपने दिमाग में असेंबल किया हुआ था वो तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन आई रियली वांटेड वेरी मल्टीलैटरल स्क्वाड filled with all-rounders, because I'm an all-rounder myself. And it's always a good move in T20 in cricket. T20, you know, you can never go wrong with all-rounders. Absolutely. And we've seen how much they've proved as a, as a valuable item to the team. All of the teams that they've played with. Bilkul. Samit Patel, Watson, Gale even for that matter. But No. Christopher Henry Gale. oops. ये पिक कर लिया आपने मतलब. Yeah. So next I would have क्रिस्टोफर हेनरी गेल. या तो बाबर वन डाउन आ रहा है अब. नहीं, मैं गेल को वन डाउन खिला. इंटरेस्टिंग. या गेल को पावर प्ले नहीं दे रहे यार. यार does he really need one? I don't know. Do you remember उसके 15 छक्के जो उसने पड़ोसियों की लीग में मारे थे एक ही मैच में, और मतलब वो जहाँ से गेल स्टॉर्म मशहूर हो गया था दुनिया पे, फिर छा गया था. इससे पहले भी था. इसमें एक और पॉइंट ये है कि people often forget Chris Gayle was a slow starter. Yeah. He wasn't someone who hit the ball from the word go. Yeah. Often he'd take his time. उसकी 5-6 गेंदें T20 में भी वो होती थी, उसने ड्रॉप भी कर देनी, उसने पॉइंट भी कर देनी, उसने लीव भी कर देनी. यार मैं कसम खुदा की गेल भूल चुका था. मेरे दिमाग में नहीं था, ज़हन में नहीं था मेरे. अच्छा, when I arrived तो गेल वाला जोक चल रहा था ना, और उसमें मेरे दिमाग में बस गया था. और मैं लेट आया था, so I missed out. ये मुझे तंग कर रहा था मूसा के, मैं नहीं जानता गेल कौन है. गेल कौन है, क्या मतलब है.
अच्छा next because I have another pick and because मैं all-rounders की ही team बना रहा हूँ mostly that you will get to see. My next pick would be one of probably one of the top 3 all-rounders of Pakistan because he's served for over 24 years. I know where you're going with this, yeah, obviously. And because he's proved his efficiency in all parts of the game, in all levels of the game, all stages of the game. He's still hitting sixes, by the way. और वो जो बंडाना पहन के आते हैं और फिर जब वो नजर आ जाता है उसके बाद तो जब वो नजर आ गया इसका मतलब है he's in the zone. Do-rag Malik. अच्छा वैसे मैं आफरीदी सोच रहा था. अच्छा मैं जो सारा नैरेटिव चल रहा था ना मैंने कहा ये आफरीदी की तरफ ही जा रहे हैं. यार बैंडाना बोला I was like अफरीदी बैंडाना. हाँ जब जैसे ही बैंडाना बोला ना मैंने कहा मैंने वो राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट मार दिया ना बेसिकली. नहीं ठीक है मलिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सॉलिड पिक. देखो अगर आपके स्पिनर लगे हो तो भेजो मलिक को एंट्री पॉइंट उसका सेट करो आकर स्पिनर्स को धोए. Even at the to finish games I think he's proven himself very solid. The jury's still out on that one. He wanted to finish the games लेकिन कर ना सका. But he's gonna do that. Yeah, probably not all of the times जहाँ पे वो he could have finished the game, but most games I remember 125 करके आउट हो गया जब 11 रन रहते थे. लोगों को मैच याद आ गया होगा. 95 करके आउट हो गया जहाँ पे पीछे आई थिंक 7 या 8 रन रह गए थे just to trying to hit that glory shot. अच्छा एक जो बड़ी ऑफ्ट फॉरगॉटन इनिंग्स शायद ये है वो वाली 2009 के फाइनल वाली. मलिक ने एक चौका मारा था खड़ा रहा था वो. He held up that end so that Afridi could do his or work his magic on the other end. खैर सादी. यार देन अगेन बात वही है कि ये फन ड्राफ्ट है राइट. हाँ, अच्छा था. और मैंने एक सीजन के लिए खेलने ये बॉयज मेरे पास. तो मुझे चाहिए था एक न्यू बॉल बॉलर. हाँ ठीक है ना. ओ मुझे पता तुम कहाँ जा रहे हो. 21st सेंचुरी का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर मेरी नजर में that's Dale Steyn. So I have some reservations on this pick actually. I don't think Steyn was a fantastic T20 player. I don't get Steyn का aura ही इतना था भाई. T20 के ऊपर तो नहीं कर रहे. कर तो रहे हैं हम T20 की टीम बना रहे हैं. T20 की बात. मैंने सोचा था Steyn का. I did think about him. लेकिन मैं अगर बॉलर्स को देखूं ना तो बड़ी कमी है. न्यू बॉल बॉलर्स की 2 और मुझे नजर आ रहे हैं. इसके अलावा और मुझे नजर नहीं आ रहे. जस्ट बाय द वे आई जस्ट वेंट फॉर डेल स्टेन कि मेरी फॉरेन कोटा पूरा हो जाए. अब मैं भरूंगा इसमें लोकल प्लेयर्स. और जो मुझे फास्ट बॉलर चाहिए था डेल स्टेन जैसी क्वालिटी का वो मुझे नजर नहीं आ रहा था कहीं और. Fair enough. I went with Dale Steyn क्योंकि मेरी नजर में he's the best bowler I've seen in the 21st century. 21st century में मानना पड़ेगा कि जो थ्रेट थी ना जितना लीथल वो था और प्लस यू कैड ऑल दैट एग्रेशन विद हिम यू नो. यार देखो ये T20 की बात है इसलिए मेरी फोर्थ पे कि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात होती तो फर्स्ट पिक होती है. वो करेंगे किसी दिन शादी. हाँ टेस्ट किक बनाते हैं. But also the flamboyance associated with Dale Steyn as a fast bowler, that flow I mean I've seen kids बच्चे academies maybe or even otherwise if I'm talking to them कि यार जो flow Dale Steyn के रन अप और फिर उसके एक्शन से मिलता था ना वो that was unparalleled. वो किसी और इसी सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं किसी और मुझे फ्लो में जिमी बेहतर लगता है. अगर आप फ्लो की बात कर रहे हो ऑब्वियसली आई थिंक स्टेन इज द बेटर बॉलर. स्टेन का एक्शन अगर ब्यूटी देखनी है ना मुझे फिर भी स्टेन का बेहतर लगता है. अच्छा मुझे जिमी का बेहतर लगता है. जिमी का फ्लो है एक bit of a start and stop because he loads up and then he revolves and Dale Steyn का वो लोड अप वो उस तरह से नहीं था. इट वाज वेरी फ्लैम्बॉयंट कि वो बस एक दफा चढ़ गया हाथ तो फिर वो बस निकलनी है बॉल वहां से. चलो जिस टीम में भी हफीज होगा वो तो ले लिया तेरे स्टेन ने. जिस हालत में भी खेल रहा है ना वो बुढ़ापे में खेल रहा है बचपन में खेल रहा है. ज्यादा प्लेयर्स हैं हमने सिर्फ 44 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं. अगर हफीज सिलेक्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा. हाँ ये भी हो सकता है. अच्छा बारी मेरी आ गई है. आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि ये प्लेयर अनपिक्ड है अभी तक क्योंकि आई थॉट कि ये पक्का मेरी हाथ से निकल गया मगर अभी तक अवेलेबल है. अ बोनाफाइड PSL legend, someone who has performed pretty much every season he's played and he's won the PSL as well on a few occasions. Riley Rousseau. Yeah, and I needed a guy at first drop जो आकर बस मार दे अगली ऑपोजिशन को. एंड वो देखो ना अप्रोचेस डिफरेंट है. तुम PSL लेजेंड्स के लिए जा रहा हूं मैं ओवरऑल नहीं मगर अब एट दिस पॉइंट आई फील लाइक ओवरऑल भी राइली रूसो का केस सॉलिड है. ही इज अ फैंटास्टिक T20 प्लेयर. ही इज बट आई स्टिल डोंट थिंक अगर ओवरऑल कंपेयर करना है तो ही इज नॉट बेटर देन KP. मेरा आई मीन श्योर आई वुड हैव गॉन विद KP एज वेल. राइली रूसो एट द मोमेंट अगर आप PSL और उसकी बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली इज बेटर देन KP. उसमें प्लस अवाम ने फैसला करना है तुमने फैसला नहीं करना. तो चलो खैर मूसा आपकी 2 पिक्स आ गई हैं. So Rasu was supposed to be my pick, लेकिन he's not there anymore. So I have to go with another player जिसके साथ आप accumulated value का term use कर सकते हो T20 में and that is सिकंदर रजा. Yeah, that's a good one. It was on my list. खास तौर पे आजकल की क्रिकेट में
You know, जहाँ पे सिकंदर रजा is literally like breaking records left, right, and center. Yeah. Very, very underrated player. Solid I pick. feel like Sikandar Raza and Rashid were the two players off the back of my head कि यार ये दोनों तो लेने ही लेने हैं because they are nailed in my team अभी. And along with Sikandar Raza, I have to go with. I think I'd go with Mohammad Haris. Now, यार ये मैंने क्यों नहीं लिया हारिस? I love you. मैं भूल गया What a हारिस. pick. अब मैं ये थोड़ा Should have लेट gone with Mohammad मुझे Haris. बड़ा डर था कि यार ये Yeah. कोई और ना ले ले. मजा आ गया. And I love that guy. सही है. And I was very disappointed कि उसको squad में नहीं लेके गए न्यूजीलैंड. But That was I a feel shocker. like he's an excellent. He's arguably the best Pakistani power play batsman in my opinion in T20 cricket. Not Time Psl? He's I mean he has a lot to prove abhi. वैसे I mean so does Haris. Yeah. It's an interesting one. वैसे I am shocked कि मेरे दिमाग में उस वक्त हारिस नहीं आया. पता नहीं मैं शायद सीनियर प्लेयर्स का ज्यादा सोच रहा था. मैं मुझे super लगा feel था कर कि रहा जब हूँ यार. विकेट कीपर की बात चल रही थी और यार पता नहीं just slipped my mind. I had a long night last night, so I guess हारिस बेचारा अब जहाँ selectors को याद नहीं आया, मुझे भी याद नहीं आया. मगर I'm happy he got picked this early. और with respect to सिकंदर रजा, but batting तो हमें सबको पता है ना कितनी अच्छी करता है. Fielder जबरदस्त. और वही शदाब वाला उसका भी एंगल है. Good leader as well. bowling में पता है he has the knuckle ball, हाँ. which is something that Sunil Narayan perfected, and this guy literally based his bowling career latter stages of his career off Sunil Narayan, and it's worked really well for him. So that's a fantastic pick by you. अच्छा दोनों picks हो गई. Yep. अच्छा यार अब टाइम आ गया एक न्यू बॉल बॉलर लेने का. एंड ठीक है पेस गिर गई है बॉय की. 130 एवरेज कर रहा है. मगर आई वुड बी शॉक्ड इफ ही इज नॉट पिक्ड अप इन दिस कमिंग राउंड. सो आई एम जस्ट गोना गो अहेड एंड पिक हिम. शाहीन शाह अफरीदी. और अब मैंने जरा इसी राउंड में जा रहा था. अब मेरे पास शादाब, रिजवान और शाहीन तीनों आ गए तो मेरी पाकिस्तानी कोर बड़ी सॉलिड हो गई है. मुझे समझ नहीं आ रही कप्तानी किससे कराऊं. फिलहाल मैंने शादाब रखा हुआ है. ठीक है मुझे पसंद है शादाब की कप्तानी. मगर दिस माइट चेंज एज दिस प्रोग्रेसेस. और या आई मीन लुक शाहीन का अगर आप PSL में रिकॉर्ड देखो तो ही हैज परफॉर्म्ड यू नो इन हीप्स. इवन अभी पोस्ट इंजरी लास्ट PSL में भी चले जाओ तो यार रन्स खा रहा होगा मगर विकेटें ले रहा था. आई होप शाहीन इज बैक टू हिज यू नो फेरोशियस बेस्ट. वापस वो 140 145 हिट करने लग जाए. आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू हैपन. आई डोंट नो व्हाट द मेजर्स आर टू इंश्योर दैट. बट तुमने KP और AB और ड्रेरास उठाए हुए हैं तो शाहीन तो बनता है भाई. यू नो शाहीन शाह अफरीदी. वी नो व्हाट peak Shaheen looks like. Yeah, and I would not have anyone else bowling my first over. That's how it stands. अच्छा मेरी बारी आ गई है. यार मैं बहुत ज्यादा अब कंफ्यूज हो गया हूँ. मैं स्ट्रेटजी जो है ना बैकफायर कर गई है. 4 सुपरस्टार्स तो फिल कर लिए लेकिन प्लेयर्स निकलते जा रहे हैं वहाँ पे. अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस बंदे के लिए जाऊँ. लेकिन probably go for a role. I'm going for a role. I need an opener. Yeah. ठीक है ना. I need an opener who can bash आते के साथ ही. और बाकी बहुत कम है पाकिस्तान में. हाँ पाकिस्तान में तो बहुत कम है. हिस्ट्री में मेरे लिहाज से मुझे 2 नाम नजर आ रहे हैं जो आके ही कर सकते थे. लेकिन मैं करंट पे जा रहा हूँ. हाँ. मैंने कहा ये जो 4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स है ना अब तो थोड़ा यूथ डाल इनके साथ एक यूथ प्लेयर डाल दो. उसकी तुम डेवलपमेंट देखना फिर क्या होगी. आई एम गोइंग फॉर टाइम यू. नहीं ठीक किया तुमने. आई थिंक इट्स वेरी स्मार्ट टू ब्लेंड योर एक्सपीरियंस विद सम यूथ. और अब तुमने उठानी सारी लोकल प्लेयर्स है ना. यू हैव एग्जॉस्टेड योर फॉरेन पिक्स. सो आई लाइक योर पिक. या हां टाइम यू ओपनर था भी नहीं मेरे पास. मुझे चाहिए भी आके बैच करे. अब कंफ्यूजन हो जाएगी मुझे. अब मैं फंसने वाला हूँ बॉयज वैसे. चलो देखते हैं. पहले तो अली भाई की 2 पिक्स आ गई ना. अच्छा नंबर 1 तो बिकॉज डेल स्टेन कहीं और चला गया तो आई वुड बी यू नो इट वुड बी अ foolish choice to choose his bunny. no, his bunny. But वैसे his bunny is still very valuable. Yeah, it is. मेरे लिस्ट में भी था. Mohammad Hafiz should make some team in my opinion. वो स्टेन वाली टीम में चले जाए तो बेहतर है. No, but I would go for हम डेथ बॉलिंग की बात कर रहे हैं and I think one of the best death bowlers that I've seen from Pakistan come out is Zaman Khan. Oh yes, great. I agree. Yeah. So number 1 Zaman Khan as my you know number 11 probably batting order की अगर हम बात करें तो. But yeah, as a death bowler he's proved himself. ठीक है बॉस. time and round. उसके बाद मैं थोड़ा सा वापस अपने ऑलराउंडर की तरफ आ जाऊंगा जो कि कुछ देर पहले उनका जिक्र भी हो रहा था. और उनकी वैल्यू जो है आई थिंक हैजंट डिक्रीज्ड एंड स्टिल प्लेइंग वेल. शाहिद अफरीदी. The only thing I'll have to say on Lala is that he was past his prime when the PSL started.
But then again, he's still Lala. Lala है भाई. और मतलब who would not have Shahid Afridi in their team? मैंने सोचा था अगर मैं कह रहा हूँ कि I'm building up, sort of like an all-rounders 11, and I miss Shahid Afridi, that would be injustice. No, and you got your leg spinner. That's very important. I feel like everyone, Saad, I'm looking at you. Everyone needs to think about their leg spinner. और मैंने सोचा था पता है आफरीदी का कि मैं शादाब की जगह आफरीदी लेता हूँ, मगर मैंने फिर सोचा यार I don't know man, शादाब PSL में ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, so I went with him. Yeah, but मैंने भी उस हिसाब से सोचा कि PSL की क्या-क्या परफॉर्मेंस रखी है, लेकिन स्किल सेट देखो ना, स्किल सेट मुझे वो उस नंबर 5 पोजीशन पे आफरीदी जैसा बैट्समैन, आफरीदी जैसा बॉलर, इवन somebody that mentor level guidance stuff on the field, it is just probably wonderful to have. Yeah, no, absolutely. I mean, he was definitely going to make some team, and I mean, you're getting a lot of value with Afridi. Zaman is an interesting one. I felt like there are other bowlers who could go ahead of him in this draft, but I respect your choice. मतलब I'm not doubting his ability at all. उसका आखिरी साल देख लें franchise T20s में, third highest wicket taker the world over, something like that. Even death bowling economy. Death bowling is otherworldly. That's just how good he is, and I mean, solid picks. I was just wanted to grab him before मेरा वो bowling option. मुझे लग रहा था कि ये रहेगा थोड़ी देर, मगर चलो ठीक है. चलो हाँ ठीक है. सादी. I'm confused. तीन ऑप्शंस है एक्चुअली, 3 डिफरेंट रोल्स फिल करने के लिए, लेकिन ये बंदा मेरे हाथ से निकल ना जाए इसलिए मैं इसे पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ. न्यू बॉलर विद डेल स्टेन, नसीम शाह. यार doesn't have a great record in the PSL. Doesn't matter, does it? लेकिन इकोनॉमी अगर उसकी देखें that's brilliant. Wickets उसने ज्यादा नहीं ली. bowling. अब तो all phase bowling है. अभी होपफुली अभी उसने वापस आके मैच तो खेला है इधर दिल्ली में, लेकिन होपफुली ही इज बैक टू हिज बेस्ट, क्योंकि बड़े कम प्लेयर्स हैं जो इस तरह का इम्पैक्ट लाएंगे. पाकिस्तान टीम के लिए अगर मैं बात करूं ना, तो हमने कितना मिस किया है नसीम शाह. बहुत. और तुमने you really hit the nail on the head. We've obviously spoken about this a lot, but all phase bowling. You don't really get that skill set all too often. और वो जिगरा दलेरी तो मैंड में अगर छक्के मार के जिता भी देगा. That's what I need. नसीम शाह आ गया. I'm happy with my team right now. No, I'm also liking all of your teams actually. I think I think इतने ज़्यादा players हैं ना कि सबकी decent teams बनेंगी यहाँ पे. और different approaches के साथ अपनी reasoning भी end पे दे देंगे कि क्यों हमने ये बनाई है, ताकि लोगों को पोल के वो उनको साथ पता चल ही रहे. और अभी इस राउंड के बाद ना, after this round is complete, let's like take a look at our teams and tell everyone कि अभी तक कौन आ गए. वैसे तुम graphics शायद डाल ही दोगे, ठीक है. अच्छा, anyway, all right then, so I have my next pick now. Yeah, this might come across as a rogue pick, but I want someone who is a finisher and who can hit big, and that guy is not Asif Ali for me. Although Asif Ali has had a splendid career in the PSL, he probably deserves to be on someone's team, but मेरी foreign picks अभी पड़ी हुई हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ Tim David के लिए. Timbo has got to be in my team. And I had thought of him बहुत पहले से. मुझे था कि मैं इसको लूंगा ही लूंगा. ये शो से पहले मूसा कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रही कि मिडिल ऑर्डर में कौन से फॉरेन प्लेयर्स रखूं. मेरे दिमाग में ना ऊंचा टिम डेविड आ रहा था. मेरे दिमाग में भी एक टिम डेविड था, 2 और हैं. हाँ, someone who literally like the PSL helped launch his career. अब वो IPL में इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है. Tim David also just goes berserk from ball 1. That's the sort of player I need in that finishing role. और I mean he's such a big unit as well. Like उसका बहुत फायदा होना है. He's sort of like that. अक्सर क्रिकेट में कहते होते थे, especially मेरे अब्बू कहते होते थे कि अब्दुल रज़ाक ने डीजल इंजन की तरह. So he used to associate some of the the players with some make and models of car. Just on that level, Tim David probably is like the Tesla of cricket. Pretty much. दबाओ बस गया. Yeah, he is like in his role one of the first players you'd want on your T20 team. And I speak of this the world over, not just the PSL. PSL में तो चलो अच्छा खेला ही था, मगर कोई भी आप T20 टीम assemble कर रहे हो ना, you'd want a player of Tim David's caliber. बेशक. अच्छा जी, मूसा. 2 picks. Double pick. Even though मेरी अभी एक foreign pick रहती है, but I'm pretty sure वो कोई भी नहीं लेने वाला. So I'm gonna go with 2 local players. Nice. पहला जो है, so I was gonna pick Zaman Khan. But I have to pick Haris Rauf. मेरी भी थी यार ये. मैं चाह रहा था. I thought you were going to pick Rauf when you were talking about death bowling. ये सही confuse करते हैं भाई. पहले आफरीदी वाली लाइन पे चलकर मलिक पिक किया, फिर डेथ बॉलिंग का जिक्र करके ज़मान पे किया. They both make sense by the way. The picks. इसकी reasoning ये है कि I don't think anyone is as much suited to T20 cricket, T20 bowling in particular as Haris Rauf. Those back over length deliveries, hits the deck hard.
relatively full deliveries जो होती हैं, wide yorkers, he has that variation. Killer slower one. Yes, and conditions नहीं उस पे apply होती. He will restrict you runs in the death किसी भी conditions में. So he's the key in my team, my number 11. And my next pick is going to be Kamran Akmal. चलो ठीक कामी है, भाई। कामी ने आना ही था किसी न किसी की टीम। हाँ In हाँ fact, मगर- my top 3 are all wicket keeper batters: Roy, Haris, and Kamran. रॉय कीपिंग करता है? रॉय कीपिंग तो नहीं करता भाई। Sorry. हाँ हाँ। So It's okay. बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती है। Kamran Akmal is my second pick, and I know कि international cricket में उसकी legacy it's not that great. इतनी बुरी भी नहीं है वैसे। Recent इंडिया वाला times टेस्ट मैच, Yeah, true. कराची टेस्ट, हाँ। एंड देन ही हैज सम वैल्यूएबल नॉक्स। उसका बेसिकली वो बस जब कैचेस ड्रॉप होने लगे थे ना, उसने उसकी वजह से उसका Even before downfall he आ गया। started dropping catches, he was a really good keeper. Stumps Wofford मारता था। I would still go out on a limb and say that Kamran has a better career for Pakistan than Umar. I would say that. As a Overall batsman, career, yeah. yeah. As an overall cricketer. Then Umar Akmal. Yeah. हाँ। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल करना है। I do not like. I think it makes sense to have Kamran in one of these teams क्योंकि PSL में तो और भी शानदार रहा है and he's someone who can give you those big scores. मुझे ये बताओ कीपिंग कौन कर रहा है यार, क्योंकि हारिस तो फील्ड में लाइव वायर है, कामी पीछे कैच ड्रॉप कर सकता है, क्या सोच रहे हो? I mean, there might be another keeper in my team. कोई पता नहीं, जिस रेट पे तुम चल रहे हो। Yeah, and Kamran Akmal का ये है कि I feel like he was the face of that second edition PSL with that Zalmi He one. was pretty good. Zalmi Yeah. one just- So I feel like it doesn't feel right if none of us pick him. हाँ नहीं नहीं, Yeah, no, he that's deserved fair. to be in that. Yeah, 100%. 100%. हाँ भाई। Are you done with your picks? Yes. इसकी दूसरी हारिस कौन सी? रऊफ। हारिस ओ हाँ, क्या हो हारिस गया? रऊफ। यार मुझे चाहिए था रऊफ, पता है, ये थोड़ी ज्यादती हो गई है मेरे साथ। अब मैं सोच रहा हूँ, और प्लेयर तो कई मेरे जहन में आ रहे हैं, एंड आई वांट समवन हु कैन provide me all round value. So this is again this might sound like a rogue pick, but I think कि ज़्यादा नहीं खेला PSL में, अच्छा। मगर maybe he can come and give me some big hits at the death, and I already have a leg spinner. This guy could potentially give me some value bowling off spin. I don't think you guys would have thought of him, but Sunil Narayan is my pick. No, he was on top अच्छा? of my list. जगह आने वाली है उसकी। मैं मेरे बड़े वैसी फुल हो चुकी हैं। And with that, I've actually exhausted. Oh, actually, I haven't. Shane Watson, हाँ, Shane Watson, Riley Russo, Tim David and Sunil Narayan. मेरे हो गए सारे। मैंने बड़ा सोचा इस वाले में, मगर मैंने कहा यार मैं कहाँ से ऑफ स्पिनर बाद में पैदा करूंगा, you know, तो जरूरी था। और you know, potentially न्यू बॉल के साथ अगर जरूरत पड़े तो करा सकता है, you know, पिंच हिटर ऊपर भेजने आ सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, यूटिलिटी तो बहुत प्रोवाइड थोड़ी बैटिंग में भी यूटिलिटी दे देगा, फील्डिंग उतनी शायद खास ना। मगर देन अगेन आई थिंक इफ यू लुक एट द लास्ट डेकेड एंड अ हाफ, Sunil Narayan is one of the you know, prominent T20 players, and someone who has actually, you know, changed the game to a certain extent with his variations and the way he bowls. वो नकल बॉल की तुम बात कर रहे थे ना, तब मैंने जब बोल दिया था गलती से, मैंने कहा यार ये कोई उठा ना ले। हाँ, मगर yeah, I've basically got an upgraded Sikandar Raza with the ball. Yeah, सिकंदर as a Pro Max. yeah, basically. चल सादी। अच्छा, बात अब यही है कि तुम लोगों के सारों के ओपनर्स तो फिल हो चुके हैं ना, Yeah. फिर ये बंदा वेट कर सकता है, ठीक है। यही मैं चेक करना चाह रहा था, अभी इसे पिक करूं या ना करूं। थोड़ी सी लेफ्ट फील्ड है, ठीक है। लोग शायद पता नहीं कोई मिस कर गया हो, ना कर गया हो, लेकिन जो T20 का ये बॉलर था ना, बैक इन द डे बिफोर ही गॉट बैंड, उसका दूसरा जब बैन हो गया था, उससे पहले तक ही वाज द बेस्ट आउट देयर, सईद अजमल। या मैंने सोचा था सही अजमल। मुझे स्पिनर चाहिए था। खेला है? खेला इस्लामाबाद के साथ शुरू में ना, पहले 2 जीता है। सीजन। हाँ, सीजन जीता था, और ही वाज वन ऑफ देयर। मेरी सईद भाई से वही रिजर्वेशन थी कि बोथ आफरीदी एंड सईद अजमल, देव ऑब्वियसली बीन सुपरस्टार्स, और एक टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट की एरा में, He's a dominant. you might be a bit young for that, Musa, I'm not sure, but late 2000s, early 2010s, Saeed Ajmal और Afridi, they carried Pakistan. And Mohammad Hafiz as well. जो उनका In bowling limited attack format. But Limited हाँ, format. in limited overs cricket, वैसे But Saeed Saeed Ajmal bhai in Test cricket टेस्ट also. क्रिकेट में भी With शानदार Abdul रिकॉर्ड। Rahman, ओहो। मतलब Killer. साउथ अफ्रीका की पिचेस में सईद अजमल ने चीजें ऐसी की हैं जो मैंने कभी किसी को देखा नहीं करते हुए। यार दुबई शारजा की पिचेस पे वो तो अब्दुल चलो- रहमान और सईद अजमल वो तो चलो इंग्लैंड को समझ उड़ा के आती है ना। रखा अच्छा, मैं हमेशा बात करता हूँ, एक होता है ना फास्ट बॉलर वाला एटीट्यूड, हाँ। वो सिर्फ बहुत कम स्पिनर्स में नजर आता है, वो सईद अजमल में था। ओ ही वेंट फॉर द किल। Absolutely. वो प्लेयर, खैर अनलकी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन उसका जो बैंड था वो ज्यादा था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बाद में लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर थोड़ा डाउन हो गया था। बट देन अगेन उसकी अगर पीक देखी जाए ना, ही वाज द बेस्ट स्पिनर
probably in the arena at that time. वो तो definitely ना, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, as good as anyone could have ever gotten at that अगर point. मैंने टॉप 4 स्पिनर्स की मैं बात करूँ ना, उसमें वार्नी, मुरली, सकलैन और सईद अजमल आते हैं मेरे। Interesting. लेकिन मेरा सईद अजमल से एक गिला है, that semi in 2010. और यार वो हो जाता है, स्पोर्ट में ये चीजें होती रहती हैं। वो तो हर एक से होता है यार। यार मेरी अम्मी कहती होती थी, मैं बचपन में स्विमिंग करता होता था, तो कहती थी पंजाबी की एक सेइंग है, तारा ही डूबता हैगा, तो जो जाता है तैरने वही डूबता है, बॉलर को ही स्कोर पड़ता है। और ऐसे क्रूशियल टाइम पे यू गिव द बॉल टू समवन हु इज रियली एक्सपीरियंस, हु कैन गेट द जॉब डन, बट इवन देन एट दैट पढ़ सकता है, इट्स देयर, इट्स ओके। उससे पहले और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ था सईद अजमल के, एक ही दफा हुआ बेचारे के साथ। वो शौक ज्यादा बड़ा था वो कि इसको कैसे पड़ गई। अच्छा, और मैं वैसे ही बात करूंगा कि मे बी चैनल दैट गिला इनटू योर प्रेज फॉर माइक हसी, because he did something out of this world. Out of this world. Yeah. माइक हसी कभी नहीं खेला, वरना वो भी पिक। हाँ, हसी खेल जाता That ना। would have been something. Yeah. अच्छा जी, तुम्हारी बारी। अच्छा दोनों हो गई इसकी, मैं हमेशा ये मिक्स कर देता मैंने हूँ। पिक की है ना, अब तुम्हारी है। अच्छा He तुमने picked Saeed सईद अजमल पिक की है। Alright, sorry, I'm completely confused over वो here. गिले No, पे but- आ गया था तो तुम्हें लगा कि हाँ, No, उससे पहले you picked, so it's my turn. yeah, Yeah. वही मैं कहूँ कि मेरी बारी बनती नहीं इनकी है। दो हैं फिर मेरी है। मैं कंफ्यूज हो गया। So it's okay, happens. अच्छा, next I'm going to go with the two options, तो मैं तो लाइन में ही चलता हूँ। पहली सॉरी मैं ये बस बता दूं, पहली अपनी पिक के बाद ना पॉज देना, लेट्स जस्ट गो ओवर आवर टीम्स अ बिट सो दैट एवरीवन नोस कि हमारी क्या क्या दोनों पिक्स कर ले, फिर दे वो दे। फिर अगला राउंड शुरू हो जाता है कोई ना। मसला नहीं। चलो सही है। So हम एक पिक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। चलो हाँ। एक पिक के बाद ले ठीक है, लो। I'm gonna go with one of my foreign players who I've adored over the course of PSL. Adored in the sense of the game, obviously, but he has been instrumental in what his team has achieved in the recent past. Of course, David Wiese. सोचा था यार मैंने, नारायण और वीसे के दरमियान में कंफ्यूज था, एक फॉरेन प्लेयर रह गया था यार। David Wiese and his services to Lahore Qalandars has been, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, just been exceptional. He went from a cult hero to a bona fide legend of Lahore Qalandars. Visa का वही वाला सीन है यार, you know the way he has basically blossomed at a very old age, I'd say. Later stage of his career, yeah. Late bloomer आप कह सकते हो, और clutch factor मिल जाता है यार आपको इससे अपनी टीम में, and मतलब that's आपके पास एक पावर हिटर है एट द वेरी एंड ऑफ द इनिंग्स, आपके पास एक रिलायबल फील्डर है, ही इज वेरी गुड विद द कैचेस स्पेशली ऑन द बाउंड्री, और उसके साथ साथ आपको पता है कि आपके पास इतना रिलायबल बॉलर है कि उसने 16 रन भी बचाए हुए हैं, उसने 10 भी बचाए हुए हैं, उसने आपको जहाँ पे रन टीम पहले बना रही है उसको कंटेन करना है, उसने वो भी आगे 2 ओवर में 10 रन दे के जो है ना कंटेनमेंट फैक्टर एक्सीलेंट क्रिएट कर दिया। तो डेविड वीजे आई थिंक इज समवन हु इज वेरी इंटेग्रल टू आई थिंक द PSL सिनेरियो एज वेल, बिकॉज ही इज गिवन दैट लिफ्ट to that role and to that subject of being, you know, a very reliable all-rounder in PSL. I think he's recently Crick Picks का एक एपिसोड हुआ था, it's a podcast I do with Jared Kimber, जिसमें हम लोग ना इसी तरह ड्राफ्ट करते हैं T20 all-rounders और था करंट। मेरी 5th पिक थी डेविड वीसा and I picked him ahead of Sam Curran, because I was like यार Sam Curran ठीक है, maybe there comes a time where he can get back to his, you know, winning ways. अभी आजकल फॉर्म बहुत ड्रॉप हुई हुई है after getting the player of the tournament in the T20 World Cup. But I was just like, यार वीसा जो यूटिलिटी दे रहा है मुझे और जो वो क्लच फैक्टर दे रहा है, he'll come and he'll win me games. So I think that's a fantastic pick. I'm really happy he got picked. मुझे बताओ किसी की रहती है फॉरेन पिक्स? मेरी रहती है, एक रहती है। अच्छा चलो, let's go over our teams real quick. Musa, you can start. So I'm opening with Roy and Kamran Akmal, and one down is Mohammad Haris. I feel like he'll keep the wickets for now. But I have someone else in mind. I hope no one else takes it. Number 5, I have Sikandar Raza. Number 6, I have Rashid Khan. Acha, batting quite high. Yep. And I mean, it could change depending on obviously. who I select. And at 10 and 11, I have Mohammad Amir and Haris Rauf. ठीक हो गया. That's a good bowling lineup. So my team is shaping up quite nicely actually. I'm quite satisfied. Watto and Rizwan are opening. For first drop पे Riley Rousseau आ रहा है. Then I've got Shadab and Tim David in the middle order. वो एंट्री पॉइंट्स वो सिचुएशन के हिसाब से आएंगे मेरे बॉयज, ठीक है। अगर लंबा खेल गए वाटो और रिजवान तो टिम डेविड को प्रमोशन भी मिल सकती है। और इन दोनों के बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेरे पास इस वक्त शाहीन और सुनील नारायण है, एंड आई लाइक माई टीम, अच्छी जा रही है। अच्छा, मेरी जो है अभी ओपनर मैंने एक ही सिलेक्ट किया, दैट्स साइम अयूब। मिडिल ऑर्डर इज फिल्ड विद सुपरस्टार्स केपी और एबी डिविलियर्स। 7th या 8th पे आएगा एंड्रे रसल।
9, 10, 11 मेरे bowling unit जो है वो डेल स्टेन एंड नसीम शाह एंड सईद अजमल। डैम। वैसे रसल को ऊपर भेज सकते हो, करता रहे ऊपर बैटिंग वो। हाँ, लेकिन अभी कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, डिपेंड्स ना 15 ओवरों में 100 लगा हुआ है या 150 लगा हुआ है। एग्जैक्टली, जहाँ पे जिस बंदे की जरूरत हो वहां पे भेजो। Okay, so my team currently has on top I have Babar Azam with Luke Ronchi. Then I have Chris Gale coming one down. Then I have Shoaib Malik, Shahid Afridi, David Wiese, and at the very end bowling option में fast में अभी एक ही है Zaman Khan. और आज बता दे अगली pick. So let's start the next round. Next pick is not really something I think बाकी सबके लिए शायद थोड़ा सा surprising हो, but I'm going to go with Jimmy Neesham. Yeah. That is a surprise. That is a very surprising. I would say that is the most rogue pick we've had all night. Yeah. अच्छा, उसकी दो वजूहात हैं। One, I really like him, he's really funny. ठीक है, मतलब वो ट्विटर पे आप खुश रहेगी आपकी टीम। Yeah. So because I really need somebody to buck up my socials as well. But on that note, I think Jimmy Neesham provides a very hard-on approach to the position and the role he plays in any team. वो कभी कभी बॉलिंग कराने वाला, स्पेशली इन PSL जब भी वो खेला है उसने कभी कभी बॉलिंग कराई। he's never been कि पक्का बॉलर के ये तो कराएगा ही कराएगा। I don't think उसने कोटा का भी अपना फिनिश किया होगा PSL में या रिसेंट टाइम्स में इन बॉलिंग। बट I think probably the fielding aspect and the reliability factor as a drop down dead batsman at the very end of the innings, और bowling में कहीं ऐसे situation हो जाए कि 5 bowlers को पड़ चुका है और अब मुझे कोई एक ऐसा रोग बॉलर ही लगा देना है। I think Jimmy Neesham does the job. ठीक है, मतलब you provided your rationale. It's still an interesting one, but yeah, I mean you backed it up, so it works. सादी। अच्छा, अब रोग पिक्स पे जा ही रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सी गालियां खा लूं। खा ले यार। नंबर 5 पे मेरा कप्तान मिसबाह उल हक। ओए Two-time PSL Okay, champion. Neesham is not the most rogue pick anymore. I think Misbah is. मिसबाह देख, मेरी जो टीम है ना, it's all out bashing, सारे आके मारेंगे। मगर एक मिसबाह बंदा का चाहिए ये मुझे। है कि he won't always bash. He doesn't need to bash, he'll stop, क्योंकि साइम, KP, AB, रसल सारे मार रहे हैं। एक बंदा कभी कभार कोलैप्स का भी डर होता है ना, तो मिसबाह आके संभालेगा, जिस तरह उसने पाकिस्तान को 2010 के बाद संभाला था। नहीं, और 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया भी उसने। उसी ने पहुंचाया था। Yeah, मिसबाह की बड़ी परफॉर्मेंस है यार। मिसबाह was not a terrible T20 player. He's not the greatest, but he was not terrible by any means. Pretty amazing at power hitting, जिसके लिए Spinner कोई से उसको क्रेडिट नहीं देता था। स्पिनर से खिलाफ खास तौर पे बहुत अच्छा बैशर था। शॉर्ट बॉल भी वैसे मारता था वो, शॉर्ट बॉल को भी। He could guide the fast bowler, the third man well as well. थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल था उसका, लेकिन मारता वो पुल भी था। खैर, मिसबाह क्योंकि कैप्टन, क्योंकि 2-time PSL विनिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेला हुआ है। You know, he did well over there somewhat. मिसबाह उल हक मेरी टीम को अब जो है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, टीम यूनाइटेड है अब मेरी। अब सब ही रोग पिक्स कर रहे हैं तो एक मेरी भी सुन लो। इस पे तो कंफर्म गालियां पड़ रही हैं और तुम लोग भी हंसोगे, मगर यार इस बंदे ने PSL में कुछ ऐसी चीजें की हुई हैं जो काफी कम लोगों ने की हुई हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम ओवरऑल, बट आई नीड टू शोर अप माय बॉलिंग एंड देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ बॉलर्स लेफ्ट ऑनेस्टली, और मुझे अब लोकल पिक्स करनी है तो थोड़ा मसला हुआ है, मसलूसेस हो गए हैं। सो आई एम गो विद मोहम्मद सामी। नहीं 2 रन डिफेंड किए थे आखिरी ओवर में। याद है किसी को मैच? मैं हाँ याद है भाई। आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे, ऐसा कोई सिचुएशन थी। 4 थे, इसने 2 दिए थे और 1 रन से जीत गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। ही इज आल्सो लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक कि ही कैन गिव मी ओवर्स ऑल अक्रॉस द बोर्ड। डेथ में जरूरत पड़े तो वहां भी करा सकता है। बचे नहीं कोई राउफ और जमान में से, तो मुझे समी की तरफ जाना पड़ा। बट पेस ऑल्सो, you know, let's not forget, एंड तक बहुत पेस मारा था यार। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी PSL में कि वापस आ गया था पाकिस्तान की टीम में। पाकिस्तान का उसका करियर साइड में रखो, सिर्फ PSL का देखो, he was brilliant. He was someone I feel who crumbled under pressure in a Pakistan jersey. प्रेशर बहुत ले जाता था। कुछ होते हैं प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंटरनेशनल में। अभी भी काफी ज्यादा लोग हैं ऐसे टीम में। I need someone over here जो मुझे ब्लॉक होल में बॉलिंग करा कर दे और तेज करा कर दे, तो मोहम्मद सामी इज माय पिक। I mean इंटरनेशनल लेवल पे उसने अंडर अचीव किया है, एंड आई रिमेंबर अ कोट शोएब अख्तर का कि ही टोल्ड समी इन 2000 कि तू मेरे से ज़्यादा तेज़ है। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम शोएब अख्तर हिमसेल्फ, सो दैट इज अ बिग थिंग। सो आई फील लाइक ही अंडर अचीव, लेकिन ओवरऑल PSL अच्छा रिकॉर्ड है। हां, PSL का बड़ा सॉलिड रिकॉर्ड है। अच्छा जी मूसा, 2 picks for you again. So 2 picks हैं। 2 ही रहती हैं। 2 ही रहती हैं। हाँ, इस टीम फुल हो जाएगी। नहीं हाँ सही कह रहे हैं। 4 और 8 रहेगा ना दोस्त।
नहीं पूरी कैसे होगी ये देखिए 4 6 8 9 नहीं तो उधर ये छठे पे कौन था? अच्छा दो वो मैंने आइडिया बनाया। अच्छा अच्छा okay, अच्छा okay, अच्छा okay. अच्छा अच्छा ठीक है, सो फिर मतलब सेकंड लास्ट राउंड तीन रह गए ठीक है, okay, ठीक है, second ठीक last है। round. पहले मुझे ये बताएं कॉलिन मुनरो किसी ने पिक किया? नहीं। ठीक है, सो आई एम गोना पिक गप्टिल। मैं मुनरो हैं? ये क्या सीन था? मैं डिसीव कर रहा था, मुझे लगा कोई नहीं pick मगर करने you वाला- have so many openers. ना आई एम गोना Colin Munro makes more sense for you. I know, but I'm gonna put Haris at 4 and I'm gonna go with Kamran at 3 और रॉय और गप्टिल जो है वो ओपन करेंगे। I God, feel like you- रॉय and गप्टिल in power play, that's a cheat code for me. And you've exhausted your foreign picks now. Yep. I don't know if Roy and Gupton is a cheat code for you. They played together for Quetta. That didn't work for them. लेकिन खैर they were might past work their for prime me. at that moment. अच्छा Fair है। that was सही है। left field, मैं नहीं expect हाँ, कर रहा interesting team बन रही है था। तुम्हारी। सबकी फॉरेन पिक्स हो गई बाय द वे Yeah. चारों। हाँ, foreign picks खत्म। अब मैं बता दूं उस वक्त मैं जो कीपर की बात कर रहा था that was Baz McCullum. Oh shit, McCullum played in the PSL. Yes, Yeah. he captained Lord. That's sad. पूरा सीजन मैं एबी और McCullum में उन्होंने confused- गाना भी गाना निकाला। भी हाँ निकाला था। थोड़ी तैयारी करके आ जाता ना, मैं फिर भी खुश हूँ। मेरी कोर अच्छी है पाकिस्तानी प्लेयर्स Mr. की। Fraudy. If I look at my foreign picks, Watto, Riley Rousseau, Tim David and Sunil Narayan, I'm quite सही satisfied. है, सही है। Yeah, yeah. तुमने थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाया हाँ। PSL में भी जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। मैं I went all out. अच्छा जी, you have another pick, right? So देखिए मैंने हारिस रऊफ के बारे में कहा था कि इवन दो लोग जो है उनको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं ODI एंड इवन टेस्ट क्रिकेट जो थोड़ी बहुत खेली भी है। एक मैच खेलो। सो उसमें ये है कि आई फील लाइक इन T20 इट्स वेरी डिफरेंट फॉर अ बॉलर। आपको वेरिएशंस चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिलीवरीज। यू डोंट रियली हैव टू बी वर्ल्ड क्लास व्हेन इट कम्स टू लाइन एंड लेंथ। आप डिफरेंट डिलीवरीज ट्राई करो एंड व्हेन इट कम्स टू दैट आई फील लाइक अब्बास अफरीदी अच्छी pick है। ग्रेट। लास्ट PSL उसने बहुत अच्छा खेला। अभी न्यूजीलैंड का टूर भी बहुत अच्छा था उसका एंड आई फील लाइक दैट बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी दैट्स अ जेम एंड आई फील लाइक ही फिट्स इन राइट एट नंबर 9। बैटिंग भी कर लेता है। अच्छी पिक है। मैंने सोचा था बास्कर, I'm not gonna lie. He was on my radar as well. और तुमने ले लिया मेरे radar से उसे। Also the nephew of my favorite Pakistani cricketer ever. Who, Umar by Gol. the way, is still up for Still up grabs. for grabs. Yeah. I बल्कि अब totally forgot about him. आ ही गई है मेरी बारी तो यार बहुत चीजें कर सकता हूँ मैं। देखो मुझे स्पिनर्स की जरूरत नहीं है अब as such. ठीक है, because I have Shadab and I have Sunil Narayan, so I'm not particularly stressed on that front. I want someone in the middle order who can, you know, play multiple roles. और पता नहीं क्यों मेरा जो दिल है वो मुझे पॉइंट कर रहा है एक सर्टन क्रिकेटर की तरफ, मगर मुझे पता नहीं ये भी फीलिंग आ रही है कि वो बच जाएगा, तो मैं रिस्क लूंगा। अच्छा। मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा। ठीक है, आई एम गोना गो विद समवन हु एक्चुअली इज गोइंग टू बोल स्पिन बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ओवर्स ही इज गोइंग टू गेट। ठीक है, क्योंकि दैट्स नॉट द रीजन व्हाई आई एम पिकिंग हिम। आई एम पिकिंग हिम बिकॉज आई वांट मोर ऑप्शंस विद द बैट। मेरी भी टीम में काफी ऑलराउंडर्स हैं एंड दिस इज अ गाय हु हैज एक्चुअली हैड लॉट ऑफ सक्सेस इन द PSL इन द अर्ली ईयर्स। आजकल स्टॉक्स काफी डाउन है। ठीक है, इतना चल नहीं रहा, मगर मोहम्मद नवाज इज व्हाट आई एम गोइंग। या क्योंकि यार जरूरत पड़े तो बॉलिंग करा लूंगा उससे। ऐसा शायद पड़ेगी नहीं विद नारायण एंड शदाब, मगर चलो मुझे यूटिलिटी तो 3 dimensions में दे रहा है ना, वो फील्डर भी जबरदस्त है। सो आई जस्ट हैड अ फीलिंग कि नवाज कोई ना कभी उठा ही लेगा, तो मैं अभी उठा लेता हूँ। Nice. ये थी मेरी सोच। अच्छा मेरी बारी आ गई। अब मुझे जाना 2 ऑलराउंडर्स के साथ। अब मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मैंने ये उठा लिया तो वो ना उठा ले तो इसलिए मैं थोड़ा जो बेहतर प्लेयर है उसे उठा लेता हूँ। कराची को PSL 5 में इसने टाइटल जितवाया था। लास्ट ईयर उसका हैड वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सीजन्स इन PSL हिस्ट्री, लेकिन उसकी टीम जो है वो 5th आई थी। इस साल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गया। इमाद वसीम यार सोचा था मैंने मैडी का। स्लॉट्स इन राइट एट नंबर 6। बैटिंग उसने अपनी इंप्रूव कर रही है। पावर प्ले में भी मैं बॉलिंग उससे अगर करवाना चाहूँ, रन कंटेनर है, तो वो जो रोल मैं जा रहा होता, जो मैं रोल्स की बात करता हूँ, उसमें परफेक्टली फिट होता है इमाद वसीम। हाँ ठीक है, मैंने मैडी का सोचा था, मगर मेरे पास नारायण था ना। हाँ। तो मैंने सोचा था मैं नारायण से भी ओवर करा सकता हूँ पावर प्ले में। तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई मुझे। हाँ वही रोल अब हाँ। फिल कर लिया ना तूने। तो मैंने नवाज को बफर ओवर्स के लिए रखा हुआ है लिटरली। आई डोंट पर्टिकुलरली नीड टू यूज हिम। वैसे अगर तू इमाद को यूज कर लेता, बैटर तो बेहतर ही है नवाज से। यार थोड़ा हाँ अच्छी ऑप्शन थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद probably before saying नवाज you probably have gone with इमाद। I was अच्छा confused. मैं भी इनमें कंफ्यूज था। अगर तूने इमाद पे करना तो मैंने नवाज करना। यार मुझे याद है नवाज कितना अच्छा था early days of early years PSL में में। he was He great. was He's you know an still the- MVP level player. He's still the 4th highest wicket taker if I'm Yeah. not wrong in PSL. Something like या that. fifth, ऐसा ही fourth या कुछ fifth, है। ऐसे नीचे नहीं। तो मुश्किल पिक थी वो वाली। 2 pick। Yes. अच्छा तो
अगली इतनी controversial तो नहीं है, but I think fits in very nicely with my team that I have going on of all-rounders. Number 1 pick at the number 8 position, I have Anwar Ali. ठीक है, Proven track record of being, a very reliable bowler. अन्नू भाई, Up front, Abnu bhai. Yes. ग्रेट ह्यूमन बीइंग, Great human मैंने being. बात Excellent. की हुई है, मैं मिला हूँ अनवर अली से, बहुत what a ही story. इतनी वार्म एनर्जी है ना वो अनवर अली की. एंड आई हैव फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत एक करीबी दोस्त है हसन भाई, ही वाज वर्किंग विद मुल्तान सुल्तान्स लास्ट ईयर, तो वो मुझे बताते थे क्या उनको नजर आता है ट्रेनिंग फील्ड पे. अब्बास आफरीदी एंड अनवर अली, these guys are the two guys who train the hardest, and Rizwan of course, but जितनी जान मारते हैं ना ये लोग ट्रेनिंग में, और जितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है अनवर अली का अराउंड द ग्रुप, that's also going to really benefit I'll you. tell you a fun story about Anwar Ali. So I was in Malaysia studying, and पाकिस्तान के वो श्रीलंका वाला मैच याद है, इसमें अनवर अली ने आके 45 मारा था. तो उसी टाइम पे अनवर अली काफ़ी मशहूर भी हुए थे, and वो उस टाइम एक बैंक के इश्तिहार में भी आ रहे थे. So we were on this stream. तो अनवर अली आगे छक्के मार रहा है और उसके बाद इश्तिहार आ रहा है, इश्तिहार में भी अनवर अली आ रहा है. तो हम उस टाइम काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मिक्स ऑफ पाकिस्तानीज एंड श्रीलंकन्स, जो बैठ के एक साथ मैच देख रहे थे. एंड नाउ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस एट दैट पॉइंट, उस टाइम तो नहीं थी, उस टाइम तो मेरी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी फेलो फ्रेंड, अब वो काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस बन गई है. अच्छा, गुड ऑन हर. या एंड शी सेज, वाओ, who is this hot guy? I remember to this point, looking like a snack. Never imagined Anwar Ali to be, हमने तो क्रिकेटर के तौर पे देखा है ना. And this girl tells me, यार ये कितना hot है यार, like अच्छा खेलता है वो, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए. But then again, so yeah, Anwar Ali, and after Anwar Ali, I am going for a lot of height. A lot of height to my bowling attack. Oh, ठीक है. Yeah, makes sense. Because वहाँ पे I think बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस किस्म के बॉलर. आपके बॉलर्स कौन है अभी? मेरे पास अभी फास्ट में ज़बान और अनवर अली. हाँ, तो you need that height right now. मुझे तो शाहीन से मिल रही है वो. हाँ या, तो मैं उससे भी थोड़ा सा ऊपर चला गया, 1 फुट ऊपर मैंने ब्रेक मार लिया. I'm going with मोहम्मद इरफान. ठीक है भाई. Interesting pick. अब लास्ट राउंड है, सबकी एक रह गई है. Pretty much. नहीं, no, अभी आपकी दो रहती है ना. हाँ, मेरी 2 रहती हैं, 7 की 2 रहती हैं, and he will have 2 actually. Yeah, 2. सही है. और फिर आपका एक लास्ट राउंड खत्म हो जाएगा. आपका एक रहेगी है ना. मेरी एक रहेगी. अच्छा, ओके, this is gonna be an interesting one. इस पे भी बैशिंग मिलेगी मुझे, लेकिन अगर सिर्फ PSL का, एक्चुअली नहीं. अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, कंफ्यूज. मुझे पता तुम किसके पास जा रहे हो. अच्छा, गेस कर किसके पास. फहीम अशरफ लेने लगे तुम, हाँ ना. देख, पकड़ लिया था मैंने तुझे. मैंने सोचा है बहुत, मैंने अब्बास आफरीदी और फहीम को सोचा हुआ था, एंड देन आई जस्ट शोर्ड अप दोस पोजीशंस विद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स. या सो आई नीड, खैर ज़रूरत तो नहीं है मुझे फ़हीम की, लेकिन फ़हीम की जो यूटिलिटी है ना, और PSL का अगर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड देखें तो उसका बड़ा फिट रिकॉर्ड है. पाकिस्तान का रिकॉर्ड हटा दो, T20 में उसने लास्ट ईयर जो 2 मैचेस है तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद को बैट के साथ, उसके अलावा रेगुलर वो विकेट टेकर है, हालांकि उसे पड़ती नहीं है. में तो ओपनिंग बॉलर था यार. नहीं, एक में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा है, और आई एम प्रीटी श्योर ही इज द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर. हाँ, he is the 4th highest. And is 5th. In the PSL, he can finish games for you. वही मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट सीजन 2 फिनिश मारे. he is improving with the bat. अगेन समी वाला मुझे उसका सीन लगता है कि वो ट्रांसलेट उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकता इंटरनेशनल में. पता नहीं क्या मेंटल ब्लॉक है, क्या है, बट इन द PSL स्पेसिफिकली इस तरह का जो रोल है बहुत कम उसमें फिट हो रहे थे. एक और बंदा है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं किस पे जा रहा था. अच्छा, मुझे लगता है गया तुम्हारा वो बंदा, क्योंकि मैंने रिस्क लिया था. मैंने बोल भी, आई लिटरली डिस्क्राइब्ड द प्लेयर टू यू गाइस एंड आई सेड आई एम नॉट पिकिंग हिम बिकॉज़ आई हैड अ फीलिंग कि ये बच जाएगा, और वो बच गया उस्ताद. If the mania is still up for grabs. So, I needed someone who can slot in the middle order and who can give me, good value in the field. और अगर जरूरत पड़ी, जो कि जरूरत पड़ेगी नहीं इस टीम में, मगर अगर जरूरत पड़ गई तो ओवर भी करा सकता है. मुझे और कोई समझ नहीं आ रही थी लोकल टैलेंट में मैं किसके साथ जाऊं मिडिल ऑर्डर में. खुशदिल was an option, ठीक है. आसिफ अली was an option. I just wasn't feeling it over there. And if the mania again, maybe he hasn't translated all that he's capable of in the PSL, but I know किस तरह का skill set वो ला रहा है. Plus I have hitters across the park in this team. और मैं बहुत डीप बैटिंग भी कर रहा हूँ. नारायण तक तो 8 तक तो मेरी पूरी बैटिंग है. इसमें शाहीन को नहीं गिन रहा मैं. शाहीन इसमें डिस्काउंट कर रहा हूँ मैं. So I didn't really know where else to go with respect to middle order batter. So I took a punt. मैंने वेट किया कि शायद unpicked रहे, और unpicked रहा. And if the mania is going to be my 10th pick. I mean if the maniac. हाँ, अभी last 2 picks. 2 पिक्स अभी दोनों कंसेक्टिव मेरी हैं. बस सब टीम खत्म होने लगी तुम्हारी.
फिर बता देना once you're done with your picks, just tell everyone what your team is. Everyone should do that after this. Am I bugging या किसी ने अभी तक फ़खर ज़मान नहीं लिया हुआ? नहीं लिया हुआ. So I'm gonna pick फ़खर ज़मान. मेरी बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी क्या सारे तो ओपनर है. हाँ. फ़खर ज़मान can play at 4. Okay, sure. So I'm gonna play him at 4. He can play at 6 also. I'm gonna demote Haris क्योंकि मुझे मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक लग रहा है. सिकंदर रज़ा is at 5, राशिद खान at 6. तो I'm gonna demote them. फ़खर at 4, Haris at 5. मैंने जो बोला था ओपनर सबने ले लिए मैं तो मैं एंड पे लूंगा वो फ़खर ज़मान की. तो तुम पागल हो ये कि तुम बेवकूफ हो कि तुमने फ़खर छोड़ा हुआ था. 6 ओपनर ले लेगा. वो तुम वहां पे ऐसे कजन तो नहीं हो. चीफ सेलेक्टर साहब ने भी कोई ऐसी हरकत की थी. 6 ओपनर ले लिए यार मेरी टीम के. अब मैं क्या I was actually quite surprised. मेरे प्लान्स में नहीं था फ़खर क्योंकि मैंने अपना टॉप ऑर्डर पूरा फिल कर लिया था. But हाँ ना मैं इसीलिए कह रहा था उसने रॉय ले लिया, गप्टिल ले लिया, हारिस ले लिया, कामी ले लिया. मैंने कहा अब फ़खर तो नहीं लेगा ये. इनकी भी सारी टीम पूरी थी. फ़खर जो है असल में T20 is a game of phases. I feel like फ़खर can fit in at any phase. ठीक है. I would disagree. But चलो ठीक है. I'm not saying he can't play there. Let's just say that. खेल सकता है. My last pick. अच्छा मुझे अपनी pace bowling थोड़ी I mean I don't have a new bowler apart from Amir. So I'm gonna pick Hasnan. Good one. Now that's a good pick. Great pick. Great pick. I love that. मेरी pick थी वैसे ये. सोचा हुआ था मैंने. Won a final for Quetta. I think 3-wicket haul in that game and I feel like he has great pace. 140 plus consistently आपको bowl कर लेता है. And has that height as well. Can hit the deck hard. अगर swing हो wicket पे तो swing भी करा लेता है. So he's gonna be my number 9 and also my second new bowler and that's my team. चलो just tell your team to the viewers. I'm opening with Roy and Guptill. One down is Kami. At number 4 I have फ़खर Zaman. A bit controversial but yeah. At 5 is Mohammad Haris. He's keeping the wickets. At 6 Sikandar Raza, Rashid Khan. Then I have Abbas Afridi who can bat as well. Then Amir and Hasnan and Haris Rauf. ठीक है. सही है. I mean I'm interested what our viewers will have to say about that. देखते हैं कि consensus क्या होता है. But I feel like you're very satisfied with your team and that's what's important at the end of the day, right? And कौन सी हमने ट्रॉफी जीतनी है. मसले पड़ गए हैं यार मेरी टीम में. मसलूसेस हो गए. 2 प्लेयर्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. एक पोजीशन है कौन सी पोजीशन. हाँ बॉलर चाहिए, पेसर चाहिए. सही है. एक तो उमर गुल ऑब्वियस ऑप्शन आ रही है दिमाग में. ठीक है मगर उमर गुल अगेन इज नॉट समवन जिसने PSL उतना लाइट अप किया हुआ. एक आधा मैच इधर उधर. ठीक है. दूसरी जगह मैं देख रहा हूँ वहाब रियाज का क्योंकि वहाब रियाज की विकेटें सबसे ज्यादा हैं एंड आई डू नीड समवन जो मिडिल ओवर्स में आकर इन्फोर्सर बने और वहाब रियाज बैटिंग भी कर लेता है यार. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लीनिंग टुवर्ड्स वहाब ओवर हियर. आई एम कंफ्यूज्ड. अब तो डेफिनेटली एक ना एक स्पिनर नवाज और नारायण वन ऑफ दीस गाइज इज बॉलिंग इन द पावर प्ले फॉर मी एज वेल बिकॉज़ आई वांट टू सेव समी फॉर द डेथ मोर सो. But both of them can do it, so you don't have a problem. शाहीन भी थोड़ा करा सकता है डेथ में, I suppose. तो as much as I love Umar Gul and I think he is a T20 GOAT, at will कराता था Yorkers, but again I haven't really picked many players जो PSL में अच्छा नहीं खेले. मेरी टीम ज्यादातर जो मैंने rationale अपना सेट किया था वो PSL की परफॉर्मेंस का ही था. There are a few anomalies here and there. Narayan could be one, Iftimania somewhat could be one, even though Iftimania के अच्छे दिन भी आए हैं PSL में, ऐसी बात नहीं है. जीता तो बहुत है उस तरह देखो तो, ट्रॉफीज तो काफी हैं. मगर यार पता नहीं, with great commiserations to Umar Gul, I wish the role fit him better, but I'm going to go with Wahab Riaz just because you can't ignore that wicket-taking record. इतनी ज़्यादा wickets हैं. अच्छा मेरी टीम बता दूँ मैं? हाँ बताओ. अच्छा जी मेरी टीम बन रही है. Oh, by the way, I have Wahab and Watto in my team. Both of them. Yeah, so there is that contest which I've killed off for you. Also, Alex Hales went unpicked. So that's an interesting one. और वो Colin Munro also went unpicked. So I'm really surprised. Guptill was the roguest pick. David Miller went unpicked as well. David Miller, yeah. वो जो तुम बात कर रहे थे ना कि मिडिल ऑर्डर में I was like Miller सामने है भाई, डेविड सामने, कायरन पोलार्ड सामने. Yeah. अच्छा I was gonna pick Wahab लेकिन Wahab मैंने इधर लिखा हुआ था दूसरी साइड पे और वो चलो वही हसनैन अच्छी पिक है. हसनैन is a हाँ very good pick. हसनैन मुझे तो मैं लेने लगा था. तुम्हारी 2 पिक्स मुझे बहुत पसंद है, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद हसनैन. Yeah. Good ones. अच्छा तो शेन वॉटसन and मोहम्मद रिजवान are opening. Then you've got Riley Rousseau, first drop. ये pretty much non-negotiable spots unless Watto and Rizwan bat for like 10 overs or 12 overs. फिर शायद मैं और लोगों को प्रमोट करूँ. मिडिल ऑर्डर में ये सारी फ्लूइड हैं पोजीशंस by the way. एंट्री पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. But I've got Iftimania, I've got Shadab Khan, I've got Tim David and Mohammad Nawaz. ठीक है.
फिर लोअर ऑर्डर में जो बॉलर्स हैं उनमें भी मेरी बैटिंग करते हैं. सुनील नारायण इज देयर, वहाब रियाज इज देयर, शाहीन शाह अफरीदी इज देयर एंड मोहम्मद समी इज देयर. सो लिटरली एवरीवन बैट्स. आई डोंट नो हु रिमेंबर्स दिस और नॉट, बट मोहम्मद समी इज नो मग विद द बैट ओवर हियर. तो मैं खुश हूं कि मुझे इतनी बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिली है. बट या देयर आर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ प्लेयर्स व्हिच वेंट अनपिक्ड, और मुझे हो रहा है कि शायद पांचवा बंदा भी एक होना चाहिए था, क्योंकि तो इसने मनरो ले लेना था एक और. या उसको मौका चाहिए था एक और ओपनर पकड़ने का. बट या क्वाइट सैटिस्फाइड. आई थिंक आई शुड विन दिस एक्चुअली. मसला अब मैं ये ऐसा- चॉकलेट खाऊंगा जो अली भाई मेरे लिए लाए थे, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो गया. मैं तो वैसे तमीम इकबाल भी सोच रहा था, बट यार तमीम इन T20 आई डोंट नो, 11 बंदे. ओडीआई की टीम बन रही होती तो मैं कहता ठीक है. नहीं, I'm just kidding, I was एक ओपनर को सारा था. हाँ, अच्छा. वैसे तो अच्छा, जॉनी अली भी है. वैसे तो जॉनी बेस्टो has played the PSL as well. Ben Dunk has opened. Ben Dunk, okay. Bubble वो gum कौन मारे बोल सकता हुए है? उसने हाँ, छक्के बहुत बॉल मारा था. लंबे लंबे मारे थे. मैं फंस गया हूँ. फसूस. मेरी फखर जमान थी पिक, मैंने उस पर बैंक किया था कि ये मेरा ओपनर होगा. मुझे क्या पता था इसने 6 ओपनर ले अब जाने. तुम क्या ताहिर बेग लोगे? अब मेरे पास ओपनर कोई नहीं. हाँ. 2-3 ऑप्शंस क्यों मुझे नहीं नजर है? आए. नहीं है वैसे 2-3 opener. ऑप्शन अच्छे मुझे आ गया ओपनर. 2-3 मुझे ऑप्शंस नजर आई हैं, ये जिसमें हिंट एक दो, नहीं पता है मुझे अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, आपका शर्जील खान है, वो है यार उस्मान खान जिसने लास्ट ईयर पीएसएल में सेंचुरी मारी थी, वो है. लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ओपन विद मोहम्मद हफीज मैन. Oh. Sure. और तो मैंने कोई कहा नहीं था है. ना. Gives you some depth. गिव्स Yeah. यू बॉलिंग ऑप्शन एज वेल. अगर ना चल रहा हुआ थोड़ा नीचे कर देंगे, केपी एबी से ओपन करवा लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे. बट तुम्हारी बॉलिंग अच्छी है उस्ताद, लेग स्पिनर की कमी तुम्हें काटेगी. कोई नहीं काटती भाई. जरूरत नहीं है लेग स्पिनर की, वो ने कोटी पड़नी है तुम्हारे वालों को तो. अच्छा, तुमने अजमल, इमाद वसीम और हफीज. और हफीज रखे हुए हैं. चलो इमाद मतलब अफरीदी को इमाद से रिप्लेस कर दिए ना. हाँ, मगर तुम ये original देखो ना bowling कि lineup पावर प्ले में या इमाद कराएगा या हफीज कराएगा. इमाद करे. हफीज तो 7 बॉलिंग ऑप्शन है मेरे पास. इमाद, रसल, फहीम, अजमल, नसीम, डेल स्टेन, ये बॉलिंग ऑप्शन. ठीक है. I like how a lot of us prioritize all rounders over here. या T20 गेम ही all-rounders का की है game भाई. Yeah. 1-2 स्पेशलिस्ट और बाकी ऑलराउंडर्स. अब मैं अपनी टीम बता दूं. ओपनर्स मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट. साइम अयूब एंड मोहम्मद हफीज. लेकिन मिडिल ऑर्डर इज पैक्ड विद केविन पीटरसन, एबी डिविलियर्स, मिसबाह उल हक, इमाद वसीम, एंड्रे रसल, फहीम अशरफ. Then I've got Naseem Shah, Saeed Ajmal and Dale Steyn. ठीक है. हाँ, that's my team. लेजेंड्स वाली टीम बनी तुम्हारी. Legends वाली जाओ अपनी पीक वाले लेजेंड्स. वैसे ये ना हो 40 साल की अगर मुझे बैज में कलम याद होता ना, मैं उठा लेता उसे. मैं इसीलिए तो कह रहा था. और मैंने हेल्स का बहुत सोचा, मगर आई वाज लाइक आई वांट टू गो विद वाटो. I wanted water as well, लेकिन फिर मैंने कहा केपी यार, केपी को कैसे. अब केपी वाटो दोनों ले जाते थोड़ी ज्यादा भी हो जाती. वैसे संगा भी खेला हुआ उस्ताद हाँ, पीएसएल. संगा भी था. Yeah, but then मतलब उस तरह again, से तो T20 में T20 में संगा में भी. I'd rather have उस्मान water. ख्वाजा भी खेला हुआ है. लियम डॉसन वेंट अनपिक्ड. सैमुअल पतरी भी है. बहुत उसमें सारे लोग. बहुत ज्यादा players Paul went Sterling. Sterling record against for Islamabad United. Yeah, Kyron absolutely. Pollard, man. Yeah. Kyron Pollard. It's unfortunate that only 16 players, foreign players could have been DJ picked. Bravo went unpicked. मैं वैसे नहीं. हाँ, नहीं. Andrew Russell's better. Chale, my last pick, हाँ. which I'm going for express pace, and I really like this guy, and I really hope that he does well, comes back from his injury. अब तो पहुंच गए होंगे. Is हाँ. Mr. Ehsanullah. Yeah, पहुंच गया था मैं. So I think he will really beef up my हाँ. मतलब fast bowling. Who's bowling with the new ball for you? Anwar Ali and? Mohammad Irfan. ठीक है, ठीक है. Ehsanullah, Zaman Khan in the Oh, yeah, middle yeah. and the death overs. क्या Like, come on. पागलों वाली फास्ट बॉलिंग है. अनु को पढ़ सकती हैं, मगर No, but 2 ओवर में पढ़ सकती हैं 4 में से. but वो शुरू के 2 overs he has to control and he knows how to do it. मगर लाला भी तो है. लाला भी है. मैं आपको टीम बताता हूँ. वीसा भी है. मलिक भी है. हाँ. मैं आपको टीम Not a बताता bad हूँ. team. So Ali Tabish 11, AT 11 जिसको हम Oh कहेंगे. my अच्छा. So number 1 we have Babar Azam. ठीक है. Luke Ronchi, Christopher Henry Gale, Mr. Shoaib Malik, Shahid Afridi, David Wiese, Jimmy Neesham, Anwar Ali, Mohammad Irfan, Ehsanullah and Zaman मुझे Khan. सिर्फ जिमी नीशम की pick पे वहाँ से भागी थी. यार I like the guy. मतलब इसमें आप बायस कर लें. चलें ये पिक मेरी जो है ना एक पर्सनल बायस के ऊपर थी. बट अच्छा यहाँ पे ना जिमी नीशम की जगह I really wanted to pick actually शॉन टेट एज माय फास्ट. मैं उस टाइम पे शॉन टेट का बहुत सोचा बिकॉज आई रियली लाइक एक्सप्रेस पेस का. तो मैं शदीद किस्म का फैन. The wild thing. But what I really thought about was कि I think जिमी नीशम का कवर ज़्यादा है in the game that जो मेरी टीम जिस हिसाब से गेम खेल रही है उसमें जिमी नीशम provides a better cover
एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर एंड एज अ बॉलर. तो मेरे वो एरियाज बहुत अच्छे कवर हो रहे हैं और मेरा रोल जो है ना सातवें पोजीशन का, मैं फ़हीम अशरफ के साथ भी जाने वाला था इसी पोजीशन के लिए, बट I would have rather picked Fahim Ashraf at 7 and Sean Tate pick. I'll tell you why I picked That Jimmy would've been Neesham great at as this point, because Jimmy Neesham का एक जो I think probably जो मेंटालिटी है ना, जो दिमाग है, जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से वो खेलता है, स्पेशली इफ यू सीन हिज इंटरनेशनल क्रिकेट, वो इज वेरी डिटर्मिन्ड, इज वेरी नॉन रिलायंट ऑन अदर थिंग्स. वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गेम लेके खेलते हैं. आई थिंक मेरी टीम को उस किस्म की रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि जिस किस्म के प्लेयर खेल रहे हैं वो ऐसा ही प्लेयर इस टीम के साथ बैठ सकता था. सो दैट्स व्हाई. अच्छा, who's captaining your team? Yeah, so Oh, थोड़ा right. सा late call, but I think as a captain I really liked Shoaib Malik, but इस टीम का कैप्टन मैं करवाऊंगा एक गोरे से जिसने खेला बहुत अच्छा हुआ है गेम, and that is Luke Ronchi. Acha. Yeah, I'm sticking with Shadab as my captain for some reason. I had lots of options. I had Rizwan, Shadab and Shaheen. Even Watto and Wahab are options. But पता नहीं, बस Shadab का मूड हो रहा है. लेकिन एक सवाल है, is Jimmy Neesham not a more odd pick than Martin Guptill जो मेरी टीम में? They're both Don't quite you think rogue. so? नहीं, Guptill अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ओपनर्स ना होते तो मैं समझ सकता हूँ. You know, And of course, I'm not trying to like shit on your team over here, but if you gave me an option between Hales, Munro and Guptill, I'll Guptill तीसरा बंदा होता है इसमें. Hales, Munro and Guptill, Yeah. that would be my कैप्टन कौन है तुम्हारा? Rashid Khan. अच्छा, राशिद खाना. I also Sam. feel like I have the two best all-rounders in the T20 game right now, Sikandar Raza and Rashid Khan. in my opinion. Currently, perhaps. Currently, राशिद तो है ही है. Yeah, हार्दिक पांड्या हो नहीं सकता इसमें, मगर वो भी है. I mean, एक वो भी वैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, include the Indian players as well. Yeah. Rashid could also be the IPL से पहले करेंगे. पाकिस्तान All time IPL. all time IPL उसमें फिर पाकिस्तान प्लेयर्स आ जाएंगे ना. Sohail Tamim first pick. The first purple cap, huh? I mean, ABD called Rashid Khan the greatest all-rounder of T20 cricket. He is. ever. 100%. We all agreed that सबकी first pick थी. 100%. सोचे बगैर सबकी Was first he pick. your first pick अगर first pick कि होती? वो मुझे एक शक था कि मेरी पहली बारी नहीं आनी पहली और मुझसे बारी पहले होगी। किसी ने पिक कर लेना. आपने मैनिफेस्ट किए चौथी बारी अपने लिए. पहली pick होती है. kind of, but I'm pretty satisfied with my team. I was really happy with second pick. I think it gave me a lot of freedom. पता है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीम से सिवाय ओपनर्स के. मैं भी बाहर बात किया, मुझे नहीं ज्यादा अपने. Can we talk about the players that didn't make it? Do you want to? कौन से? Hales, Munro, McCullum, Pollard, David Miller, ने Ahmed Shehzad भी pick हुआ यार. खुदा का वो खौफ. रिटायर्ड है यार. हाँ, उसने वो- रिटायरमेंट ले ली थी. सलमान बट नहीं हुआ pick. सलमान भाई. इसी नोट पे मुझे लगता है खत्म. बिल्कुल. अच्छा, on that note, Shan Masood, who मैं उसके stats पढ़ रहा था, has been wonderful in the stats for PSL, and in an interview he said कि यार मुझे टीम ने कहा कि हमें इस रोल पे इस स्ट्राइक रेट के साथ बंदा चाहिए और उसका एग्जैक्ट वही स्ट्राइक रेट है. उनको चाहिए था बंदा 125 से 130 के स्ट्राइक रेट पे ओपन करे इनिंग्स एंड टू कैरी द इनिंग्स. So Shan And he did Masood- that, but he still went unpicked हमारे ड्राफ्ट में. शान मसूद came on the Red Inker once upon a time. Jared Kimber का podcast होता है वो एक. उस पे शान मसूद ने आइडेंटिफाई किया था that he had spoken to a lot of people and he was aiming for 30-130. 20 की एवरेज, 130 की स्ट्राइक रेट. He's lived up to that. Unfortunately, गेम उससे भी आगे निकल गई. बहुत आगे निकल गई. You know? तो yeah, I mean, I wouldn't have been surprised if he made someone's team. सादी ले सकता था उसको as मैं ले opener. सकता था, मगर he's gone with a professor. मैं प्रोफेसर को इसलिए लिया क्योंकि उसको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आ जाती है. और T20 क्रिकेट में जो हफीज 2.0 वापस आया था ना, that was crazy. हालांकि वो नीचे खेला था, ओपन नहीं किया था उसने. वैसे in लाहौर. hindsight, हाँ. maybe I could have gone with Miller over Tim David. मगर I'm happy with Tim नहीं David. नहीं No, Yeah. ठीक है. टिम्बो जो है ना, जो छक्के वो मार सकता मैं है. बताऊं, मैं फहीम अशरफ और किस बंदे के बारे में कंफ्यूज था. अजहर महमूद. हाउ भी खेला हुआ है. हाँ, Yep. मैंने- बहुत हल्का सा. हाँ, खेला था. इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद के लिए खेला था. मैं अजहर महमूद हो सकता, फिर मैंने कहा बहुत ज्यादा ही पुराने हो जाएंगे यार. मैंने भी काफी सोचा था अजहर महमूद के बारे में, लेकिन अजहर महमूद का मुझे आई थिंक जो अगर फॉर एग्जांपल इफ अगर हम अपने हमारी टीमों का आपस में मैचेस चल रहे हैं, आई थिंक अजहर महमूद उसमें भी ना कोच या मेंटोर ही होगा. He's probably that sort of a character. Yeah. So yeah. अच्छा, to add more fun to my team, I was about to add Umar Khan, अगर आपको याद हो. हाँ हाँ. I have played against him. अच्छा. Yeah. कहाँ गया यार वो? यार he's डिवीजन 2 में इस टाइम थोड़ा सा है वो. उसकी जाती भी हुई है उसके साथ, but I think he had to live up to the standards that जहाँ वो उसके शुरू में क्रिएट कर गए थे कि ये दूसरों नहीं थे, लेकिन वो उस हिसाब से ना आगे नहीं बढ़ पाया.
प्रॉब्ली कुछ जो है ना, कुछ वो कहते हैं ना शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, तो वो आई थिंक a bit similar to मोहम्मद असगर जो था जरा। यार असल में ना दिस इज फिनोमेना विद रिस्पेक्ट टू इमर्जिंग पिक्स। हाँ, वो जब वो इमर्जिंग die से down निकल जाते हैं वो ना die तो down मसला हो जाता है बड़ा। वो सिल्वर में आते हैं, ये गोल्ड में आते हैं, तो फिर हाँ, ऑलरेडी you have to be exceptional to On make that it from note, emerging to अबरार अहमद वेंट अनपिक्ड। ब्राड ने अनपिक्ड ही होना था यार, अभी कहाँ ज्यादा खेला है। मतलब No, किसकी but जगह हमने था? साइम अयूब भी spinner पिक in किया है, T20s। हमने दूसरे प्लेयर्स भी किए हैं, बट उस तरह तो फिर इमरान ताहिर मिस्ट्री स्पिनर। हाँ, इमरान ताहिर भी एक ऑप्शन थी, मोइन अली भी एक ऑप्शन थी भाई। मोइन अली भी option थी, Yeah. लेकिन मोइन अली नहीं, मोइन अली क्यों है? खेला है मोइन, खेला है मोइन। खेला है मोइन अली मुल्तान के लिए। मैं इस्लामाबाद का सोच रहा था, लास्ट ईयर उसमें था तो नहीं, he was आई there. फील अगर T20 में आप अबरार जैसे स्पेशल स्पिनर खिला रहे हो तो ही हैज टू बी वर्ल्ड क्लास। मतलब अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा वो। आई थिंक सो। यार हाँ, ऑल टाइमर 11 में मेरे नहीं ख्याल से पहुंचा था वो, बट देन अगेन आई होप कि किसी दिन पहुंचे। होपफुली इस सीजन के बाद ही पहुंच जाए यार। तो चलो यार हम लोग जोफ्रा आर्चर वेंट आउट। जॉफर्स हैज प्लेड, यस यार। वैसे अब तुमने ना मुझे वो कर दिया है, जोफ्रा अच्छी FOMO हो पिक रहा है। हाँ। मैं स्टेन और आर्चर मुझे ना एक तरफा वो लिस्ट देख लेनी चाहिए जितना थी। दुख है ना और किसी का नहीं है, बट मुझे आई फखर रियली का वांटेड दुख टू है, हैव मुझे स्टेन इन माय फखर टीम। का फखर ने तुम्हें बहुत बड़ी बेवकूफी की है, तुम्हें फखर जल्दी उठाना चाहिए था। यार तीन हाँ चार- मुझे समझ आ रही है, तुम्हें नहीं लगता था कि वो इतने वो ओपनर उठा यार लेगा। मेरे मिडिल ऑर्डर और स्पिनर रहता था ना, अजमल और रहता था, फहीम रहता था, फिर इमाद की बात आई और फखर की बात आई। मैंने तुमने कहा, वो फखर वो कौन वो करेगा? गाना सुना हुआ है नारी नारी? नारी नारी में एक नारी नारी, एक आता है ना, लिरिक आता है, नारी अजमल का लंबा यूनू। जिसको हम सब कुछ और ही समझते हैं। This is the perfect note to Yeah, end this video. but before he ends it, we'll put up some polls. You have to tell us who wins this round of this draft for us, and Better be me. yeah, और आगे जाकर हम इस तरह की और फन चीजें करेंगे। इन दोनों का डेब्यू था यार, let us know how you felt about them. एक round of applause हो जाए। Yeah. And keep done. sending your videos. It doesn't mean कि दो लोग यहाँ आ गए तो आपका मौका नहीं बन सकता। Obviously, ठीक है, we want to obviously. give maximum people opportunities over here. हाँ, वो मैंने पहले भी क्लियर किया है। कीप सेंडिंग योर वीडियोस। ट्यूसडे 6th Feb उसकी डेडलाइन है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, आपको अप्रोच कर लेंगे और Let us know what you think of each team and which one is best and why that was mine. डोंट डू दैट। We'll see you guys next time। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम चारों को ट्विटर पे भी फॉलो कर दें, बाकी सोशल्स पे भी फॉलो कर दें। We'll see you guys next time. Until then, अल्लाह हाफिज।